नमस्कार जी। और फिर माँ कहीं मन लगाओ और रात में लगा रही यहाँ लगा लॉबी में लगा नहीं था ना, तो कहीं भी नहीं लगी थी झाड़ू तो। और तभी तो जल्दी बुलाई मैंने, झाड़ू वाड़ू लग गया, साफ सुथरा हो जाएगा। वो तो अपने टाइम से आई 10 बजे। नाश्ता कर जाते और सफाई। तोमर सर म्यूट जी जी म्यूट कर लीजिए, भाभी जी की आवाज आ रही है। सिंह साहब थोड़ा सा पास कीजिए, आपका पंखा अभी दिखाई दे रहा है, इसको अच्छा। पास कर लीजिए थोड़ा, अपने लैपटॉप को थोड़ा पास कर लीजिए। अच्छा ठीक है, आपका पंखा दिखाई दे रहा है, ठीक है, नाउ इट्स ओके। ओके ओके ठीक है, थैंक यू। मैं पहली बार प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ इस तरह ऑनलाइन। सब काम पहली बार ही होते हैं सर। हाँ नहीं, ऑल द बिगनिंग विल बी द फर्स्ट टाइम। थैंक यू। मनीला से हमारे प्रेसिडेंट भी जुड़ गए हैं। अच्छा ठीक, राइट। टेस्टेड डॉक्टर तोमर जुड़ गए हैं, डॉक्टर मोहन का पाटने वाले कोऑर्डिनेटर वो भी हैं।
अस्थाना जी नमस्कार, कितने लोग जुड़ गए? सर प्रेसिडेंट साहब भी आप तो जुड़ गए। हाँ प्रेसिडेंट साहब भी आप जुड़ गए जी। आप तोमर साहब भी अच्छा, जुड़े हुए हैं, बस टाइम पे आ जाएंगे सब लोग। हाँ अरे 6-4 हो गया, 2 मिनट और देखते हैं फिर करते हैं। Bhatnagar has joined. यस सर, यस सर, भटनागर साहब आए। गुड जी नमस्कार अच्छा सर, अच्छा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ मैं भी आ गया हूँ। हाँ सर, वेलकम। वेलकम यू ऑल। और तुम बोलोगे तो आवाज आएगी। यही हाँ अलीगढ़ में तूफान आया हुआ है, लाइट की प्रॉब्लम है। कांचन जी नमस्कार। ध्यानचंद जी आप जुड़े हुए हैं? ज्ञानपाल जी जी हाँ आप आगे, बस बढ़िया, आप ही का इंतजार हो रहा था। जी 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 आपकी विचारों की बहुत जरूरत है हमें। जी डॉक्टर साहब। मोना सर या मत कहूँ यार, आपका इंतजार हो रहा है, लेट हो गया। नाम बोलोगे। क्लिक कर दे। डॉक्टर साहब जुड़िए, सब लोग इंतजार करते हैं। सिंगर साहब भी सब लोग आ गए। मैं शुरू कर रहा हूँ। हेलो,
हेलो, हाँ जी, Yes, sir. Singhal sir has come. हाँ sir, Yes, sir. Singhal sir. can we start? Singhal sir, आप आउट ऑफ फोकस हो गए हैं. बोलो. Yes, sir. Singhal sir, can you hear me? हाँ, Professor Singhal, can you hear me? साहब, can we start? Yes, please come in front of the camera. No. सर नमस्कार. नमस्कार भैया जी, नमस्कार. सर Yes, sir. Now we start. Can we start? Yes, sir. We will start. Okay. आपका इंतजार हो रहा था. Dr. Indu is here. अच्छा. Dr. Ramaiya Rajan is here. रत्नाकर साहब, Yes, sir. नमस्कार जी. नमस्कार. नेशनल सेक्रेटरी IGSI, डॉक्टर तोमर, प्रोफेसर इंदु वाशने. We have selected a topic today which is of national importance, and that is how we can double the income of farmers. We have got a galaxy of speakers. Yes, sir. Dr. V.K. Singh, a scientist from Pusa Institute. Professor Shweta Yadav, head of the Department of Zoology, Sagar University. M.G. Malikla, assistant professor, School of Development Studies, Institute. Dhanpal Singh, program progressive farmer. Now we have got sources of income of the farmers which are limited, and these sources of income were not unlimited earlier. We remember that our country became independent. At that time, we used to import food grains from outside. Government of India of late has started that we should have sources of income growth. We should improve the productivity of the crop, improvement in the livestock productivity, increasing use of efficiency of savings in cost of production, increase in cropping intensity, diversification of high-value crop, improvement in real prices received by farmers, shift from farm to non-farm occupation. Agriculture is a stressed subject, and the federal government or the central government can do a little. And with that, there are several steps which have been taken, just like establishment of Viticulture Lab, Yes, okay. My National Horticulture Board, Dr. Indu bhi aa gaya. assistance for dairy farming, for arid and agricultural research, Pradhanmantri Kisan or Kisan Samman Yojana has given rupees 6,000 per year in monthly installments for farmers. And Pradhanmantri Jan Dhan Yojana for old age or
farmers who have got no support on attainment of age of 60 years. Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, promotion of organic farming, wheat farming, and several other sectors. We have got a panel of experts who will revolve around these areas and give their opinion, advice, so that we can go for the direction. Thank you. अभी केसी सिंगल साहब बोले, योगेंद्र आएंगे। अभी केसी सिंगल साहब बोले, हमारे अलीगढ़ के प्रेसिडेंट। केसी सिंगल हमारे प्रेसिडेंट हैं, वो उनको भी कर दिया आपने? अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। अब बाकी सबको म्यूट कर दो, फिर मैं कंप्यूटर वाले very good evening to all. I, Dr. D.K. Asthana, Secretary General of Indian Economic Expression, as well as the Aligarh chapter, the International Goodwill Society of India Aligarh chapter. I welcome you all in this conclave on the basis of the title of the doubling of the farmer income. By the some technical default, our President, Dr. K.C. Singhal sir, have mute his mic. By the way, I asked him to unmute his mic, and I asked Dr. Indu Ashne, our moderator, please take over the charge and conduct the meeting as per schedule. Dr. Indu Ashne, Principal SRDA College, Hathras, will take charge as a moderator. I request him to take the charge and conduct the meeting as per schedule. Ask the President, Dr. K.C. Singhal sir, for welcome address. Please. Professor Indu Ashne, unmute yourself. Thank you, Dr. Asthana, for giving me the charge of moderator. I welcome all my colleagues, my elders, the today conclave of International Goodwill Society of India. बहुत अच्छा ने चुना है। प्रधानमंत्री मोदी जी का एक सपना था कि हम कैसे किसानों की आय को दोगुना करें, और मैं आज इस विषय को हम यहाँ पर चल रहे हैं। मैं सबसे पहले इंटरनेशनल गुडविल सोसाइटी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय डॉक्टर योगेंद्र नारायण जी का अभिनंदन करती हूँ। उनको सादर प्रणाम सर। हमारे आदरणीय भटनागर जी, हमारी अलीगढ़ चैप्टर के अध्यक्ष प्रोफेसर के.सी. सिंघल जी, डॉक्टर के तोमर सर, आप सभी को सादर अभिवादन। और जैसा कि हमारा शेड्यूल है आज का कार्यक्रम, तो सबसे पहले मैं कीनोट स्पीकर के रूप में आमंत्रित करूंगी अपने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर योगेंद्र नारायण सर को कि वो अपना उद्बोधन दें और हमें बताएं कि किस तरीके से किसानों की आय को डबल करने की दिशा में हमारे कदम चल रहे हैं। आज के कीनोट स्पीकर आदरणीय डॉक्टर योगेंद्र नारायण जी। डॉक्टर इंदु, एक मिनट सर, एक मिनट। डॉक्टर इंदु, प्लीज वेलकम एड्रेस बाय द प्रोफेसर के.सी. सिंघल। वो अनम्यूट हो गया था, बीच में गड़बड़ हो गया था। लेट हिम कंटिन्यू।
ओके ओके ओके, मुझे लगा कि उनका उद्बोधन संपन्न हो चुका है। टेक्निकल डिफॉल्ट, सब टेक्निकल डिफॉल्ट। ओके ओके ओके, मैं अलीगढ़ चैप्टर के आदरणीय अध्यक्ष प्रोफेसर केसी सिंघल सर से अनुरोध करूंगी कि वो अपने स्वागत उद्बोधन को जारी रखें। आदरणीय प्रोफेसर केसी सिंघल जी। आदरणीय योगेंद्र नारायण जी, इंटरनेशनल सेक्रेटरी गुडविल सोसाइटी ऑफ इंडिया, डॉक्टर आर के भटनागर साहब, नेशनल सेक्रेटरी, प्रोफेसर तोमर, डॉक्टर इंदु वार्ष्णेय, डॉक्टर अस्थाना, आप सब लोगों ने जो सब्जेक्ट आज सेलेक्ट किया है वो एक देश के लिए बहुत ही आंख खोलने वाला सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें हम कुछ आगे बढ़े हैं और कुछ नहीं भी बढ़े हैं। एक वक्त था जबकि हमारे देश में खाद्यान्न की कमी थी और खाद्यान्न की कमी को पूरा करने के लिए हम बाहर अनाज मंगाया करते थे, मगर उसके बाद धीरे ये तब्दीलियां आई, चेंजेस आए और हम इतना अनाज यहाँ पैदा करने लगे कि अपने लोगों के लिए काफी। मगर अब हमारे प्रधानमंत्री ने जो प्रण लिया है कि हम खाद्यान्न का उत्पादन और काश्तकारों की जो इनकम है उसको डबल कर दे, उसके लिए एक बहुत बड़ा स्टेप है और एक उन्होंने की है। तो सोर्सेज ऑफ इनकम ग्रोथ दे शुड बी इंक्रीज्ड, क्रॉप की प्रोडक्टिविटी बढ़नी चाहिए, उसके साथ लाइव स्टॉक जो फार्मर अपने यहाँ इस्तेमाल करता है घर पे, वो लाइव स्टॉक की प्रोडक्टिविटी बढ़नी चाहिए और इंक्रीजिंग एफिकेसी ऑफ सेविंग एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो कम हो जाना चाहिए। हायर वैल्यू ऑफ क्रॉप्स मिले, इसके लिए मिनिमम वेज प्राइस, मिनिमम क्रॉप का प्राइस गवर्नमेंट ने दिया है और उसके बाद में ये फार्मर्स को अपनी इनकम सप्लीमेंट करने के लिए फार्म से नॉन फार्म सेक्टर की तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है। एग्रीकल्चर इक्विपमेंट हमारे पास है, मगर उसके लिए भी एक सप्लीमेंटेशन की जरूरत है, खाद की जरूरत है। इसके अलावा जो और फैक्टर्स हैं वो जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि एक मिलने लगी है, जिसमें हर फार्मर को एक फिक्स्ड अमाउंट 6,000 रुपीज वो मिलता है। इसके बाद ओल्ड एज पेंशन भी किसानों को उपलब्ध है, कोई सपोर्ट नहीं है। देन बीमा योजना भी इम्प्लीमेंट की गई है, ये इनकी तरफ से ही ऑर्गेनिक फार्मिंग का प्रमोशन बढ़ाया गया है और बी कीपिंग और दूसरे और जो तरीके हैं जिनके जरिए फार्मर अपनी इनकम बढ़ा सके। इस सब को देखते हुए एक ऐसा सिनेरियो बन रहा है जिसमें हमको जरूरत है कि हम अपने किसानों को एक ऐसा रास्ता दिखाएं और ऐसी एडवाइस दें जिससे कि हम देश के लिए और उन्नति की तरफ बढ़ सके और प्रधानमंत्री के जो सपने हैं वो पूरा कर सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपने सेक्रेटरी जनरल साहब से कि वो अपना उद्बोधन शुरू करें। डॉक्टर इंदु वार्ष्णेय। थैंक यू सर, आपने बहुत अपने स्वागत उद्बोधन में बहुत अच्छे विषय वो बहुत अच्छे से रखा है कि ये जो आज का विषय है वास्तव में आई ओपनिंग है। और जो आपने जो दो महत्वपूर्ण बिंदु इसमें रखे कि लाइव स्टॉक शुड बी इंक्रीज्ड, क्योंकि बीच में हमें ये देखने में आ रहा था कि पशुपालन की तरफ
हमारे किसानों का ध्यान नहीं जा रहा, जबकि वर्तमान में भी देखते हैं और पूर्व में अतीत में भी ये देखने में आया है कि जब तक कृषि और पशुपालन आपस में एक दूसरे पर डिपेंडेंट थे, तब तक पशुपालन भी अच्छे से हो रहा था और हमारी कृषि के लिए खाद और बाकी सारी चीजें भी बहुत अच्छे से मिल रही थी। लेकिन वर्तमान में जब पशुओं पर पशुपालन के ग्रामीण क्षेत्रों में किसान स्पेशली कम करने लगे तो स्थितियां थोड़ा सा बढ़ाने लगी। आज पुनः पशुपालन की तरफ किसानों का जब ध्यान जा रहा है तो स्थितियां सुधर रही हैं। इसके अलावा जो ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात आपने कही वो भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो हमने फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स का जो प्रयोग जिस खेती में बढ़ा, उससे खेती की उर्वरा शक्ति घटी और उत्पाद की जो क्वालिटी थी उसमें भी कमी आई। तो ये दोनों चीजें जो विशेष रूप से आपने कही ये स्वागत योग्य हैं। मैं आज के इस कॉन्क्लेव के कीनोट स्पीकर आदरणीय डॉक्टर योगेंद्र नारायण जी, अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष इंटरनेशनल गुडविल सोसाइटी ऑफ इंडिया, से विनम्र अनुरोध करूंगी कि कृपया अपने उद्बोधन से हम सभी को लाभान्वित करें। आदरणीय डॉक्टर योगेंद्र नारायण सर। सर आप म्यूट है, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर वाशनी जी। और सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूंगा अपने अलीगढ़ चैप्टर को कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण विषय पर संगोष्ठी रखी इकोनॉमिक एसोसिएशन के सहयोग के साथ। ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि मोर देन 50% ऑफ द पॉपुलेशन या तो कृषि पर निर्भर है या कृषि में स्वयं योगदान देते हैं और खेती करते हैं। और जब तक इन लोगों की इनकम बढ़ेगी नहीं तब तक भारत का जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और जो एवरेज इनकम है ऑफ सिटीजन्स ऑफ इंडिया वो पूरा नहीं होगा, वो बढ़ेगा नहीं। आपको याद होगा कि 2016 में वर्तमान सरकार ने, भारत सरकार ने डिक्लेयर किया था कि उनकी एक प्राथमिकता ये होगी कि इस 75 साल के जो इंडिपेंडेंस डे है तब तक वो फार्मर्स की इनकम डबल कर दी। तो टारगेट ये 2022 रखा गया था, जब ये 75 साल शुरू हो रहा था। आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है। प्लीज। हाँ, अदर तो 2022 में यानी 75 साल जब पूरे होंगे इंडिपेंडेंस के, ये घोषणा की थी कि वो सरकार प्रयास करेगी कि वो डबल कर फार्मर्स इनकम, परंतु ये लक्ष्य अचीव नहीं हो सका। हम लोगों ने जो बेंचमार्क एस्टिमेटेड एनुअल इनकम रखी थी फार्मर्स की 2015-16 में, वो थी उस समय 96,703। ये एस्टिमेटेड एनुअल इनकम थी पर फार्मर, और इसको हम लोगों ने बेस ईयर माना था। और इसके माने ये हुए कि हर महीने प्रतिमाह जो आय होएगी 8,095 प्रतिमाह आय होएगी, और इसको ये कहा गया कि ये डबल कर दी जाएगी बाय 2022। जो सर्वे किया गया 2018-19 में, जो 77th राउंड ऑफ सिचुएशन कल्चर हाउस होल्ड्स का, उसमें ये पाया गया कि 2 साल के बाद भी सिर्फ इनकम जो है 10,218 हो पाई। और ये जो है कि हम लोग चाहते थे कि ये डबल हो जाए, इनकम 21,146 रुपए प्रतिमाह हो जाए, वो संभव नहीं हो पा रहा है। आज ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि एवरेज इंडियन फार्म साइज, यानी कि एग्रीकल्चर सेंसस 2015-16 के हिसाब से वो ये था कि
average Indian farm size is 1.08 हेक्टर्स, और इस तरह से इंडिया के पास 146 मिलियन लैंड होल्डिंग्स हैं, और इसमें से 68.5% लेस देन 1 हेक्टर है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय हो जाता है और एक समस्या है कि इस छोटे से फार्म होल्डिंग्स को उनमें से कैसे इनकम डबल की जाए। सब जो आय के स्रोत हैं वो इतना है नहीं कि वो डबल हो सके इनकम, इसलिए फार्मर्स भी, कृषि और किसान जो हैं वो अपने डाइवर्सिफाई कर रहे हैं सोर्सेज ऑफ इनकम। और इसमें ये जैसे डेयरी है, यानी कि काऊ मिल्क, फिर या करना, दूसरों के किसानों के खेतों में मजदूरी करना, या छोटे छोटे बिजनेस खोल लेना, फिर फ्लावर्स का जो फ्लोरिकल्चर, उसमें भी वहां से आय के स्रोत किसान चाह रहा है कि वहां से भी हो जाए तो शायद हमारी इनकम डबल हो सके। फिर बहुत किसान तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में चले गए, और जो उनकी तनख्वाहें मिलती हैं मनरेगा में, उससे भी थोड़ी आय बढ़ जाती है। फिर इनकम फ्रॉम नॉन फार्म वर्क, जैसे सेल पेड फूड्स, दुकानें खोल ली हैं, ढाबे खोल लिए हैं किसानों ने अपने खेतों के पास, उससे रिफ्रेशमेंट ड्रिंक्स सब मिला के शायद उनकी इनकम बढ़ जाए। इस उम्मीद से किसान अपने जो डाइवर्सिफाई कर रहा है सोर्सेज ऑफ इनकम। और 2015-16 में जो नेशनल सर्वे हुआ था, उसमें ये निकला था सर्वे के आधार पर कि 7% इनकम फ्रॉम फार्मर्स इज फ्रॉम कल्टिवेशन, और 32% फ्रॉम वेजेस एंड सैलरीज अर्न्ड, 8% लाइवस्टॉक, और 35% फ्रॉम नॉन फार्म एक्टिविटीज। यानी कि नॉन फार्म एक्टिविटीज जो है वो एक बहुत प्रमुख आय का स्रोत हो गई किसानों के लिए। फिर एक नया फैक्टर भी आया, जिससे कि फार्मर की इनकम बढ़ने लगी। ये थी इनकम अर्न फ्रॉम लीजिंग ऑफ लैंड एज वेल एज रेमिटेंसेस रिसीव्ड बाय द फार्मर्स हाउसहोल्ड। तो जो किसान के परिवार के लोग बाहर चले गए, या तो किसी जिले में किसी अन्य जिले में चले गए, शहर में चले गए, किसी और स्टेट में चले गए, जैसे पंजाब है, मध्य प्रदेश है, वहां से भी लोग जो हैं काम करके अपने परिवार को की इनकम बढ़ाते रहे। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नई स्कीम शुरू करी, जिसके आधार पर 6,000 रुपए प्रति वर्ष एनुअली फार्मर्स को दिया जाता है। पर इसके बावजूद सब चीजें इकट्ठी करके भी डबल नहीं हो पाया इनकम। डॉक्टर सिंघल ने ठीक अभी बताया था कि जो एक कमिटी सेटअप हुई कि किस तरह डबल फार्मर्स की इनकम डबल की जाए, तो उन्होंने, जैसे डॉक्टर सिंघल ने अभी बताया, बिल्कुल सही बताया उसकी रिपोर्ट के आधार पर, कि जो उन्होंने सुझाव दिया कमेटी ने कि इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप प्रोडक्टिविटी, improvement in livestock productivity, remunerative price to farmers, diversification to high-value crops, increase in crop intensity, and shifting cultivators to non-farm and subsidiary activities. तो ये भी एक सुझाव दिया गया कमेटी के द्वारा कि जो काश्तकार हैं अब कुछ थोड़ी ऐसी नॉन फार्म और सब्सिडरी एक्टिविटीज करते रहे। फिर भारत सरकार ने भी अपना जोर लगाया, विभिन्न योजनाएं शुरू करी जिससे कि आउटपुट बढ़े और जो किसान के जो खर्चे होते हैं उसको कम किया जाए। तो इसमें प्रधानमंत्री की कृषि सिंचाई योजना, फिर एक सॉइल हेल्थ कार्ड, और परंपरागत कृषि विकास योजना, और फिर एक शुरू कई नई योजना, फसल बीमा योजना, that provide insurance against crop and income loss। फिर इसको रिस्क कवर करने के लिए
ये सोचा गया कि अगर ये फसल बीमा योजना विस्तार किया जाए तो बड़ा एक इन्वेस्टमेंट आ जाएगा फार्मिंग सेक्टर में, कि अभी इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा हमारा सेक्टर में। किसान अपना तो लगा रहा है, पर ये बहुत जो इन्वेस्टमेंट आना चाहिए। आपके चिप्स बनते हैं, लेस चिप्स, तो उधर मथुरा की तरफ जहां जहां पोटैटो कल्टीवेशन है उसको लीज पर ले लिया है चिप मेकिंग कंपनीज ने। ले की कंपनी है तो लेज चिप्स जो बनाती है, तो उसमें भी आय के स्रोत बढ़ जाते हैं। तो लीजिंग जो है एक अलग स्रोत बन है फार्मर्स इनकम के लिए। फिर अगर आप स्टैटिस्टिक्स के आधार पर देखें, डबल करनी है रियल इनकम आपकी फार्मर्स 2015-16 के आधार लेकर, बेस लेकर, तो इसमें एनुअल ग्रोथ ऑफ 10.41% फार्मर्स इनकम का एनुअल ग्रोथ होना चाहिए। तो ये तो हो नहीं रहा है। तो हमें ये देखना है कि जो फार्मर की इनकम है फार्म के अलावा आउटसाइड द एग्रीकल्चर सेक्टर, वो कैसे इनकम बढ़ाई जाए। द सोर्स आउटसाइड एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग शिफ्टिंग cultivators from farm to non-farm occupation and improvement in terms of trade for farmers or real price received by farmers। हमारे सरकार ने कृषि के 3 बिल्स भी इसी सोच से और इसी उद्देश्य को प्राप्ति करने के लिए लागू किए थे, पर फार्मर्स का बड़ा प्रोटेस्ट कर दिया। पॉलिटिकल पार्टीज आ गई उसमें, क्योंकि उसमें एक प्रावधान ये भी था कि फार्मर को कहीं भी जहां भी वो बेच सके और उसको अच्छी आय मिल सके तो वो वहां बेच दे। कोई जरूरी नहीं है कि कृषि मंडी में लाए वहीं बेचे, क्योंकि उसमें एक तो वो बिचौलिए होते हैं, वो बहुत इनकम ले लेते हैं फार्मर्स की। पर वो जो तीनों हैं वो तो पारित नहीं हो पाए, फार्मर्स का एजिटेशन हो गया। अब आगे क्या करना चाहिए, तो ये सोचा गया है कि the sources of growth and output and income of farmers can be put in 4 categories। एक तो है डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स इंक्लूडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में बिजली आती है, सड़कें आती हैं। अगर आपको बिजली मिलती रहे, आपके हैंडपंप्स या ट्यूबवेल्स चलते रहे, और इसी तरह बिजली जो है आपके इंडस्ट्रियल जो एग्रीकल्चर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं उसको भी एक प्रोत्साहित किया जा सकता है। फिर टेक्नोलॉजी, फिर पॉलिसीज एंड इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स, ये 3-4 चीजें सोची गई हैं कि फार्मर्स इनकम को बढ़ाते नहीं। इसके साथ साथ जो पुरानी सोच भी जो थी वो भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जो आपके बीज हैं, एक इंक्रीज यूज ऑफ क्वालिटी सीड होना चाहिए, इंक्रीज यूज ऑफ बेटर फर्टिलाइजर होना चाहिए, और जो सिंचाई का जो क्षेत्रफल है, द एरिया अंडर इरिगेशन हैज टू बी एक्सपेंडेड एंड एरिया अंडर डबल क्रॉपिंग शुड बी इंक्रीज एवरी ईयर। मैं अभी गया था वेस्ट बंगाल पिछले साल, तो वो अपना मैंने देखा कि 2 बार राइस प्रोडक्शन कर लेते हैं वेस्ट बंगाल में। हम लोग ज्यादातर जो फार्मर्स हैं वो सिंगल एक क्रॉप ले लेते हैं, और कि जो है क्योंकि पानी नहीं रहता तो पैडी कल्टीवेशन नहीं कर पाते हैं। तो डबल फार्मिंग कैसे किया जाए, डबल क्रॉपिंग कैसे किया जाए, ये एरिया टू एरिया पर आप एनालिसिस करके इसको प्रोत्साहित करना चाहिए। फिर इसके अलावा हमारे किसान फल और वेजिटेबल्स उगाते हैं, इसकी भी बढ़ोतरी होनी चाहिए। एक पॉजिटिव स्कीम होनी चाहिए कि उनके फ्रूट एंड वेजिटेबल जो कल्टीवेशन हो रहा है should increase by 5% every year, and in the case of livestock, improvement in herd quality,
better feed, increase in artificial insemination, reduction in calving interval, and lowering age at first calving are also potential sources of growth. क्योंकि किसान के पास एक तो फार्म क्रॉप्स रहती हैं जो एक बहुत प्रमुख आय का स्रोत है, पर दूसरा लाइफ स्टॉक है, गाय भैंसे, इनसे भी बकरियां होती हैं, फिर आपके फिश कल्चर होता है, इसमें भी एम्फोसिस देना चाहिए जिससे फार्मर्स इनकम बढ़ सके। फिर कृषि क्षेत्र में मॉडर्न मशीनरी सच एज लेजर लैंड लेवलर्स, प्रिसिशन सीडर्स एंड प्लांटर्स, ये भी इसका यूज बढ़ाना चाहिए और ट्रेनिंग देनी चाहिए फार्मर्स को कि इसको इन जो आधुनिक मशीनें हैं इनको कैसे उपयोग किया जाए। और इस तरह का एक्सटेंशन जो हम लोग वर्ड यूज करते हैं ये ब्लॉक में, ये एक्सटेंशन वर्क उनको समझाना इसका किस तरह प्रयोग किया जाए अपना प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, ये सब करना चाहिए। और हम लोग देखते हैं कि भारत सरकार ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो जारी कर दी है जिससे कि फार्मर्स को एक मिनिमम प्राइस मिल सके। वास्तव में क्योंकि जगह जगह ना तो एफसीआई है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, और जगह जगह गांव में ये बड़ा मुश्किल हो जाता है फार्मर्स के लिए कि कहाँ ले जाएं, ऑयल सीड्स कहाँ है, मिलेट्स कहाँ ले जाएं, पल्सेस कहाँ ले जाएं। और ये जो चीजें हैं ये एमएसपी से नीचे चली जाती हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस से नीचे चली जाती हैं, क्योंकि जो खरीदने के जो साधन है वो बहुत कम है। तो इसमें भी बढ़ावा चलना चाहिए। तो ये सब चीजें पर अगर हम लोग एम्फोसिस देंगे तो फार्मर की इनकम बढ़ सकती है। एक हम लोग कल्पना कर सकते हैं कि फार्मर्स की इनकम बढ़े। और देखिए फार्मर्स की इनकम बढ़ाना इसलिए भी आवश्यक है कि जो जब इनकम बढ़ेगी तो जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं या जो मैन्युफैक्चर होती हैं प्रोडक्ट्स, चाहे कपड़ा हो, चाहे आपके कुछ फिनिश प्रोडक्ट्स हों, वो भी आपके फिर फार्मर्स खरीदते हैं। आजकल मैं देखता हूँ, मैं गया था नैनीताल, तो उधमपुर में हर एक फार्मर के पास एयर कंडीशनर्स हैं, वॉशिंग मशीन्स हैं, और इस जब आय बढ़ती है तो ये जो साधन है ये बढ़ते हैं, तो आपकी नई नई मशीनरीज का उपयोग करने लगते हैं फार्मर्स। तो हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को भी एक बड़ा इंसेंटिव मिलेगा। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंटरलिंक्ड है, इसलिए भी बहुत जरूरी है कि हम फार्मर्स इनकम डबल करें। मैंने कुछ सुझाव दिए हैं, कुछ अपने इसी जो आपसे अभी किए हैं अपने व्यूज, और मुझे खूब मालूम है कि हमारे एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स यहाँ बहुत सारे बैठे हुए हैं, इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स बैठे हैं, ये अपने एक्सपर्ट व्यूज देंगे। मैं तो अपने व्यूज दे रहा हूँ एज वन हु हैज वर्कड इन द फील्ड, और जो हम देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ये आधुनिक तरीके क्या क्या है फार्मर्स के प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, उस आधार पर अभी मुझे बहुत खुशी है ये जानकर कि फार्मर्स के रिप्रेजेंटेटिव भी बोलेंगे, तो वास्तविक रूप से उनसे मालूम होगा कि क्या क्या साधन उपयोग करते हैं और किस तरह और उनको अच्छे साधनों का उपयोग कर सकते हैं। मुझे यहाँ इस सिंपोजियम में बुलाने के लिए मैं पुनः धन्यवाद डॉक्टर सिंघल और अस्थाना जी को, और जितने अलीगढ़ चैप्टर के लोग IGSI मेंबर्स हैं, सबको मैं अपना आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने निश्चित रूप से अपने विचार यहाँ रखे, और इसमें विशेष जो बात थी कि डाइवर्सिफाइड होना चाहिए किसान को, वो कृषि भी करे और उसके साथ साथ दूसरे व्यवसायों में भी अपनी दखल बनाए, तभी उसकी आय डबल हो सकती है। और वर्तमान में सरकार का जो एम्फेसिस है वो FPOs पे भी है। अगर किसान के साथ, कृषि के साथ साथ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से अगर वो प्रोडक्शन की तरफ भी बढ़ता है तो निश्चित रूप से उसकी आय बढ़ेगी।
आपने 4 क्षेत्रों में विकास की बात कही कि अगर गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, तकनीकी का विकास होगा, किसान के अकॉर्डिंग योजनाएं बनेंगी, इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट होगा, तो निश्चित रूप से किसान की आय बढ़ेगी। एक बात आपने जो फसलों के विविधीकरण की कही कि हमें साल में कम से कम 2 फसलें किसान को करनी चाहिए। और जो एक महत्वपूर्ण चीज इसमें आपने एक और बात कही कि जो बीज, पहले जो पुराना हमारा किसान था वो अपनी ही फसल से बीज लेता था, तो बीज की क्वालिटी भी अगर अच्छी होगी तो निश्चित रूप से फसल अच्छी होगी और किसान की फसल की जो कीमत होगी मार्केट में वो अच्छी होगी, तो जिससे कि उसकी आय बढ़ेगी। इसके संबंध में मैंने कहीं पढ़ा था, वो मैं यहाँ सबके साथ में शेयर करना चाहूंगी। गोवा के चीफ मिनिस्टर मनोहर पर्रिकर जी ने एक बार अपनी एक कहानी शेयर की थी। उन्होंने कहा था कि जब वो छोटे थे तो वो उनके गांव का नाम पर्रा था, इसकी वजह से वो पर्रिकर पड़ा था। मैंने ये पढ़ा है, सत्यता कितनी है मुझे नहीं जानकारी इसके बारे में, जो मैंने पढ़ा है सिर्फ मैं उसके बारे में कर रही हूँ। और उन्होंने कहा था कि जब वो छोटे थे तो गांव में वहां तरबूज बहुत अच्छी क्वालिटी का होता था, और जो तरबूज उगाने वाले किसान थे वो बच्चों को बुला के कंपटीशन कराते थे और उनको तरबूज खिलाते थे, और उसका जो बीज होता था वो उसको इकट्ठे करके अगले साल के उपयोग के लिए ले जाते थे। उसके बाद वो शिक्षा प्राप्त करने के लिए आईआईटी चले गए, और जब वहां से वो लौट के आए थे तो उस गांव के तरबूजों की जो पहले बड़ा बड़ा अच्छी क्वालिटी का तरबूज होता था उसका साइज छोटा हो गया। और जब उन्होंने इसके पीछे का राज जानने की कोशिश की तो पता चला था कि उनके जो पहले किसान थे उनके जो बच्चे थे वो अब कृषि करने लगे थे, और उनको लगता था कि उनके पिताजी जो तरबूज खिलाने का कंपटीशन करते थे वो वास्तव में बर्बादी थी उनकी। और तो उन्होंने वो जो बड़ा तरबूज था उसको मार्केट में भेज के छोटे की कंपटीशन कराना शुरू किया, जिससे कि बीज छोटा आया और फिर जो अगली फसल थी वो उस हिसाब से छोटी होती गई। तो निश्चित रूप से अगर बीज अच्छा होगा तो फसल अच्छी होगी। आपने ये बिंदु को भी यहाँ रखा। आपके विचार निश्चित रूप से स्वागत योग्य हैं, और ये विचार आई ओपनर हैं। लोग इनको अध्ययन करेंगे और आगे आने वाले जो हमारे स्पीकर्स हैं वो आपके इन बिंदुओं को लेकर अपने विचारों को विस्तृत रूप से साझा करेंगे, ऐसी मेरी आशा है। हमारे अगले स्पीकर हैं डॉक्टर वीके सिंह जी। डॉक्टर वीके सिंह बॉटनी के प्रोफेसर, बॉटनी में पीएचडी हैं। He is a pioneer in creating awareness on cultivation and marketing of medicinal crops. विशेष रूप से आप जो आयुर्वेदिक कृषि के जो प्लांट्स हैं उनकी खेती आप करते हैं, और नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड के प्रोजेक्ट पर आप कार्य कर रहे हैं 2001 से 2000 ड्यूरिंग आपने किया है 2001 से 2002 के बीच में। इस प्रोग्राम में किसानों से मिलना, विभिन्न जो विकास जो डिफरेंट ब्लॉक्स हैं, डेवलपमेंट ब्लॉक्स, उनमें आप निरंतर किसानों के साथ मिलकर कार्य करते हैं। आपने नेशनल सेमिनार भी ऑर्गेनाइज की हैं अपने इस विषय पर, मेडिसिनल प्लांट्स पर। आपने एक मॉडल डेवलप किया है मेडिसिनल सीड विलेज, जो बड़ा गांव अलीगढ़ में है, यहाँ पर आप कार्य कर जो आपका अपना क्षेत्र है। और आपने एक फील्ड डे भी ऑर्गेनाइज किया ऑन सेलेक्टेड मेडिसिनल क्रॉप्स एट पनिहावर विलेज। He prepared literature in Hindi on cultivation techniques and marketing of some 19 high demand medicinal species with assured market for free distribution to farmers. The medicinal crops identified and suggested to farmers were suitable for cultivation in the agroclimatic conditions of Western UP. Dr. Singh, superannuated as Deputy Director, Botany, CCRUM, Ministry of Ayush, Government of India in 2008.
He also served as advisor cum consultant in the same ministry post retirement until 2017. मेडिसिनल प्लांट्स के क्षेत्र में निरंतर कार्य करने वाले आदरणीय डॉक्टर वीके सिंह जी को मैं सादर आमंत्रित करती हूँ कि आप अपने आए और अपने विचारों से हम सभी को लाभान्वित करें। डॉक्टर वीके सिंह। आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए सर। Now, can you listen? यस सर। Thank you. At the outset, I would like to thank Organizing Secretary Dr. Asthana Saab of International Goodwill Society of India for having invited me to deliver a talk on a very important topic, that is doubling the income of farmers. In fact, I have been associated with the cultivation of medicinal plants for quite a long time. I do not know whether by suggesting the cultivation of medicinal plant we can double the income of farmers, but certainly we can give them an option. We can give them an option other than their traditional crops. Way back in 2002 to 2006, I had completed a project on awareness training and cultivation of medicinal plants in Western UP and suggested so many quite number of crops for cultivation. In fact, after 18 years, I just thought of writing a document on the project activities I had run all these years. And I was surprised, it was a pleasant surprise to me that during the year 2000, 22 and 23, some 150 farmers are still cultivating medicinal plants in different districts of Aligarh, Bulandshahr, Mathura, Etah, Hapur, and Kasganj. And some 150 farmers are cultivating, and these crops includes ashwagandha, kalmeg, kanai, kantakaranj, etc. I would like to show some of the photographs of the farmers who are still cultivating the medicinal plants in their fields. I think he is Mr. Ashok Kumar. Can you see the photograph? Yes. Ashok Kumar is from village Rustampur, and he is cultivating what is this? This is Shatavari. All of you must be knowing this plant. And he is Mr. Dhyan Pal Singh. He is also a participant to this meeting. He is also cultivating Shatavari in his village, Panyavar. Then this another farmer is cultivating ashwagandha in his field in the village Nehrola. Then in village Lodha, tulsi is being cultivated. You can see it along with the farmers. Then this is Pramod Kumar, village Kotha. This is the ashwagandha crop in the mature stage. You can see. Then again this ashwagandha along with the farmers, they are cultivating. You can see. And ladies farmers also, they are also cultivating medicinal plants in their fields. Vimlesh Kumari from Panyavar, she is cultivating ashwagandha. Now it was a pleasant surprise to me that even after 16 years of ending the project, the cultivation of medicinal plants is still a ground reality. And here is a whole list of farmers. This has been provided to me by Mr. Dhyan Pal Singh of Panyavar village. He has surveyed all this area, and
he has told me that all these farmers are cultivating medicinal plants during the year 2002 and 2050. Now, as we know, the demand of medicinal plants is increasing day by day because they are being used widely in the manufacture of Ayurvedic and Unani drugs, then this nutraceuticals, then cosmetics, and all that. And as per WHO estimate, by 2050, the demand for herbal products, global demand, will be more than $5 trillion. So we have to increase the cultivation of medicinal plants so that the farmers' income can be increased. So coming to the implementation project, it was a new area for me. It was rather challenging because I did not know how to cultivate medicinal plants. I took help of Dr. A.K. Tomar, who is patron of the society. He came to my help and he helped me in the organizing the farmers meeting in Aligarh. And fortunately, he is there. And so first of all, we had organized we have, in fact, I had a problem how to proceed with the cultivation of medicinal plants. Then I had to prepare literature. And in the literature, I had prepared some literature on medicinal plants, and that was distributed to the farmers. You can see the literature. It was prepared by me in the Hindi. It is a plant Sanai. It is known Cassia angustifolia, and it is basically used in the preparation of time tune, if you all know about it. In this literature, I have given information about cultivation of medicinal plant, how to cultivate a particular species of medicinal plant, giving information of soil and climate, how to prepare field, sowing month, method of sowing, disease if any, harvesting, post-harvesting operations, and how to correct, and what is seed and seed production, and then economics. What is the expenditure per hectare, return per hectare, net income, and at that time, what is the market? So this is the basic information. In fact, when I was in medicinal plant board, I had prepared a book on cultivation practices of some commercial important medicinal plant. This is the book, but this book is in English, so I had to translate it in Hindi for the help of the farmers. Then, while implementing the project, I had prepared this booklet also. That's also in Hindi, and its name is पश्चिमी उत्तर प्रदेश में औषधीय फसलों की खेती संभावना एवं विकास. Then we published another edition, 2006, of the same booklet, and this cost farmer 25 rupees because the cost of the booklet was 50 rupees. We were not giving anything free to the farmers. It was the cost of 50% subsidy. Then I also prepared a booklet providing addresses of all traders and manufacturers of Ayurvedic medicine throughout the UP and different districts, so that they can contact for sale of their produce. And I would like to show some of other pamphlets also. These were distributed to farmers during farmers meetings. This is Amla. This is Tulsi. This is Safed Musli. This is Kata Karan. All these crops are suitable for the climatic conditions of Western UP. This is Ashwagandha. This is
and this is Jatropha. Then this is Isabgol, and then this is Mushtana. Then this is Shatavari, and you can see in Hindi we have given all the details about the cultivation practices by the farmers. And these are some addresses of the farms and the manufacturers who can purchase their produce. Now coming to the cultivation of medicinal plants. Okay. Sorry. You want to say something, Astana? Okay. Then how to implement the project? Hello. Or what is? Yes. Then we started with this project during the year 2002 and continued until 2006. Then we organized 16 farmers meets in different development blocks. These blocks were Aligarh, Hathras, Firozabad, 8 districts. Then we also organized our national seminar on medicinal plants. डॉक्टर साहब की वॉइस कट रही है। हेलो, आपकी वॉइस कट रही है बार बार। आप अपने सजेशंस दीजिए सर। ओके, वॉइस कट रही है बार बार। My suggestion is to the farmers can take up cultivation of medicinal plants because these plants are the input cost is very less. All medicinal plants can be cultivated in any type of soil. They don't require any fertilizers. They don't require irrigation, regular irrigation. Only the rainwater is sufficient for them, and only this cost of seed is there. So they can definitely increase their income by undertaking cultivation of medicinal plants. And secondly, there is a problem of marketing. There is a problem of marketing, how to assure it. So in this regard, a memorandum of understanding has been signed between National Medicinal Plant Board and the industry bodies to purchase the produce of the farmers. I would like to read the verbatim, the MOU signed between the National Medicinal Plant Board, Ministry of Ayush, and the herbal industry bodies. As a major objective of this MOU, the herbal industry bodies would be providing a buyback guarantee to the farmers or tribals on medicinal plants cultivation and collection programs supported by National Medicinal Plant Board. This will help to conserve some rare medicinal plant species and to sustain the supply of quality raw materials of Ayush, nutraceuticals, and herbal industry. So the real problem was where to sell the produce. This problem is also solved by the government of India, and farmers can now easily cultivate the medicinal plant. Thank you very much, sir. Okay. थैंक यू सर। आपने किस तरीके से किसान आयुर्वेदिक पौधों की खेती करके अपनी आय को बढ़ा सकता है। इन आयुर्वेदिक पौधों की खेती के माध्यम से किसान की आय भी बढ़ेगी, कृषि की उर्वरता भी बनी रहेगी और उन पौधों के प्रयोग से जनता को भी लाभ होगा निश्चित रूप से। आपने जो कहा कि WHO के अनुसार आयुर्वेदिक प्लांट्स की खेती से
भविष्य में जो आय है वो $5 बिलियन तक होने की संभावना है। और निश्चित रूप से जो वर्तमान में हम देख रहे हैं और कोविड के बाद निश्चित रूप ये विशेष रूप से देखा गया है कि भारतीय जो मसाले हैं, जो हमारे आयुर्वेदिक पौधे हैं, इनकी जो 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 खपत है देश में वो बढ़ रही है। लोग एलोपैथी से आयुर्वेद की तरफ जा रहे हैं। और मैं अपने अनुभव से भी बताना चाहूंगी कि एलोपैथी के जो साइड इफेक्ट्स हैं, आयुर्वेद निश्चित रूप से लोगों को फायदेमंद साबित हो रहा है और बड़ी बड़ी बीमारियों को दूर करने में हमारा आयुर्वेद सफल हो रहा है। आयुर्वेदिक पौधों की खेती के द्वारा निश्चित रूप से किसान अपनी आय बढ़ा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जैसा कि आपने बताया लागत कम है, आगम ज्यादा है। मार्केटिंग की जो प्रॉब्लम थी वो भी सरकार के MOU के माध्यम से, सरकार के प्रयास से वो दूर हो रही है। तो हमें इस बात को किसानों तक पहुंचाने की आवश्यकता है, क्योंकि हमें किसान तभी आयुर्वेदिक पौधों की खेती करेंगे जब उन्हें मार्केटिंग के बारे में ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि अभी तक किसानों को मार्केटिंग का ज्ञान नहीं है, इसलिए वो पारंपरिक खेती ही करते हैं। आयुर्वेदिक पौधों की खेती वो की तरफ उनका रुझान अभी नहीं है। इस बारे में हम take your few minutes, if you permit me 2 minutes only. जी I want to submit one very important fact. जी And that is, Madam, I have been working in National Medicine Plant Board for the last so many years, 3-4 years I worked, then I retired. And since then, they were never addressing the problem of marketing of farmers' produce. Or this thing I was realizing in my project also. After the farmers' produce was there, nobody was there to purchase them. So the project, I had to come forward and got the produce sold at Jodhpur. Now coming to the real point, during 2021, in the national budget, the Ministry of Finance had allocated rupees 4,000 crores for herbal farming. They were allocated 4,000 crores, just imagine. When I read it, I was so alert that they are being given 4,000 crore rupees, and there is no provision. The farmers will cultivate. Who will purchase? Nobody will purchase it. Then immediately, I don't know what happened. I wrote a letter to Prime Minister of India, and I am very happy to share with you that Prime Minister listens even to a common man's representation or letter, whatever you may say. I wrote to them that you have been kind enough to allocate 4,000 crore rupees to the National Medicine Plant Board, but I am sure this will go waste because there is no mechanism in Medicine Plant Board in the last 15 years about the assured buyback arrangement. And I wrote to Prime Minister to kindly stop this grant unless they develop a mechanism of buying the farmers' produce. I also wrote to Mr. Nirmala Sitharaman, Finance Minister, National Medicine Plant Board, Niti Aayog, and Mr. Narendra Singh Tomar, Agriculture Minister, because he was looking after the farmers. And finally, we received a reply on 24 September 2020. I wrote on 17th May that they have signed this memorandum, which I read before you. So I was very happy that this was my small attempt, but it succeeded. So there is MOU has already been signed between National Medicine Plant Board, Ministry of Ayush, for purchase of entire produce of the farmers, and they can sell their produce. Thank you, madam. Sir. थैंक यू सर, बहुत अच्छा इनिशिएटिव आपका कि आपने प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्ट पत्र लिखकर किसानों की समस्याओं का समाधान कराया। और मैं यहाँ पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी बधाई धन्यवाद दूंगी इस मंच से कि उन्होंने आपकी बात को सुना और मेडिसिनल प्लांट के क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाकर जो उसकी कृषि करने वाले किसान हैं उनको सुविधा प्रदान करने का कार्य किया।
तो आप निश्चित रूप से जब इस तरीके का कोई कार्य होता है तो वो समाज को लाभ पहुंचाता है। और प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है किसानों की आय को डबल करने का, उसमें आपका ये प्रयास निश्चित रूप से मील का पत्थर साबित होगा, ऐसी मुझे पूर्ण आशा है। और इसी दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। आई वुड लाइक टू इनवाइट प्रोफेसर M.G. Malika from Kozhikode to give her valuable views. Professor M.G. Malika. Good evening. May I audible? Professor Malika, I would like to introduce you to the audience. Professor Malika is Associate Professor, School of Development Studies, Malayalam University, Wakkad. She is PhD from Kannur University, 2012. UGC NET in economics. She is a very old NET qualified, 1994. She has published more than 20 papers in different fields. She has also published some papers in edited books and proceedings of the seminars. She has presented her views as a paper presenter and resource person in so many seminars. She is a good orator also. She has worked as expert in translation of textbook for +2 students at CRT Kerala. She has been member in professional organization like Indian Economic Association. She has been member in committees, member in expert committee in Kannur University to prepare a BA Social Science syllabus. So I would like, she has attended so many courses related to training programs and so many training programs and workshops. I would like to invite Professor Malika to share her views with us. Thank you, ma'am. Can I share my PowerPoint? Yeah. You can share. Yeah, it's host disabled participant screen sharing. So you have to just allow me to. Dr. Monica, please allow, ma'am. Yeah, I have allowed. Please check again. Yeah. Is it visible? Yeah. Yeah, it's visible, ma'am. Okay, thank you. So I'm just the keynote address, the speaker, and also the speaker who discussed about the agriculture sector and all, and very valuable suggestions and points mentioned. And now I'm just trying to discuss about how we can just double our farmers' income. On that, some data I'll show. And structure of the presentation is agriculture statistics, area, irrigated area, agriculture value added and total value added, employment status, and changing the structure of employment from 51 to 11, productivity comparison, problems of agriculture, income from farm household, structure of income of rural population, and another thing, how what are the problems of agriculture, seed replacement ratio, what is the problem, use of NPK, use of compost, use of micro irrigation, non-farm income share, small fragmented agriculture. These are the issues related to this income, increasing the income, and how we can double the farmers' income. The last practically what we can do: use of technology in farming, use of scientific marketing, diversification of agriculture, pricing strategy, increase wage rate, reduce the food loss,
new education policy and doubling farm income through incorporating agriculture in school curriculum and practical knowledge in science education. This way I'm just trying to discuss this this presentation. And as the keynote address, the presenter also already discussed about this area and this relevance and all. And we can just see that total geographical area and net zone area is reported area, 45.27% of the net reported area is net area zone to reported area. And the cropping intensity is only 141.60. That means we have only 41.6% of the area is having more than once. We are just on more than once. All the other rest of the part is having only once, once it's used for only once. Net irrigated area to total net zone area, that is 51.34%. This is all I got agriculture statistics at a glance, 2018-19 statistics, and is around 15-16 agriculture statistics survey data. And then value of, that the agriculture sector is contributing presently 20% of the gross value added. And that is 17.3, almost 17-18%. These are a lot of differences in government sources also, a lot of difference at seen, little bit constant price and current prices. But anyway, it's less than 20% of the gross value added is coming from agriculture sector. And 57.8% of rural households are engaged in agriculture. And percentage share of agriculture exports to national income is 14.3. This is the importance of agriculture sector, because though the gross value added, only 17%, 18% is coming from agriculture sector, but 57.58%, 60% of households are depending upon agriculture. So that we need to, if we need to remove poverty or we need to increase the rate of definitely we have to just think about something about agriculture sector. So that's why the relevance of this discussion, because agricultural only through agricultural increasing the income from agricultural income, India's standard of living can be raised. And we can see that in 2011 to 2020-21, there's what has happened to the structure of this agricultural and allied sector, and crops production, that the 55%. Earlier we know 11-12, 65.39% of the total agricultural and forestry and fishing part is from crops cultivation. That reduced to 55.06% in 2020-21. Livestock, now it's 30.13% of this total agriculture and forestry and fishing. That sector is contributing 30% from livestock, and forestry and logging 8%, and fishing and aquaculture on 6.72%. So cropping and livestock, these two segments are the major area in this agriculture primary sector. And we can just Malika ma'am, your slide is not, I think, preview right now. Only first page is there. Okay, is it okay now? Yeah, it's okay right now. Okay, Yeah. okay. Slideshow may not be seen. No, it's okay. Okay. So these are the things. No, it's okay now. Yeah, it's okay. Okay. Now, while we are just thinking about the productivity or yield per hectare, we can say that Indian yield productivity is very lesser. And these are from some studies, Nidhi Aayog's and studies. And according to 2019 NSS report, 83.5% of rural households are having land less than 1 hectare. And 70.4% agriculture households are having land less than 1 hectare. That shows that we need to think something about some kind of production strategies which focus only for small farmers, marginal, sub-marginal farmers and all. So majority, 85% of the rural households are having less than 1 hectare plot. And 70% of the agriculture farmers are having less than 1 hectare. And this kind of we need to, when we are thinking about production and all, or in this kind of marginal, fragmented, very small farm sector, we need to increase the productivity of these kind of small farm sectors productivity. For that part, we have to just give more importance. And structural change in agricultural workers, we can just see that in the 1951, almost 71.9% of the
agricultural workers or cultivators. At that time, agricultural laborers constitute only 27.3%, but that has changed in 2011 census data. It shows that cultivators percentage has reduced to 45.1%. Agricultural laborers percentage has increased to 54.9%. That means in rural area, we have to just give more importance to agricultural laborers. Cultivators percentage is going down and down, and this agricultural landless laborers or the agricultural laborers category, that part is very increasing fastly. And then output and employment in selected countries, and we are just seeing different countries. The output reduction, you know that when the economy is developing, automatically when the contribution from agriculture sector goes on declining, at the same time employment also should goes on decline. But in the case of India, when compared to Brazil, China, Malaysia, Vietnam, some countries are there. So you can see that their employment, the share of employment percentage also reduced vastly. But in India, the share of employment remains the same. It's only 44.5, but it's more than 50% of the population. So 54% of the population is depending upon agriculture sector. 2011 data, but our gross value added is very reduced drastically when compared to other countries. We are not creating much job opportunities outside. We cannot create job opportunities outside, so that the marginal productivity of majority of the laborers are in agriculture sector is 0. So that is why these people are not producing anything. So this much people are just in this agriculture sector. So if we need to increase the income, doubling of agriculture product, definitely we need to find out some kind of job opportunities in non-farm sector or anything, and then only the agricultural income can be increased. Otherwise, unproductive, the people who are just sitting there, the productivity is very lesser. So average this product, that will be, they are getting very lesser average product, so their income level will be lesser. The number of persons who are depending upon agriculture should reduce. And income sources of farm household, 2003 NSS data, the result which showed that, an aggregate in the farm households, 41.4% of the income in 2003 was coming from agriculture, share in income, agriculture, that is the cultivation and all. At that time, livestock contributed 14.4% of income, and wages and salaries only 19.8%, and non-farm income business, from the income from non-farm business, that was 24.4%. So total income of the agricultural farm households in 2003 NSS data, 41.4% is coming from actually cultivation, and livestock 14.4%, and wages and salaries only 19.8%, non-farm business 24.4%. But when we are just seeing this figure from 2018 to 2019 figure, we can see that income from wages has increased to 39.7% of the income of a farm household is coming from . Ma'am, you are not audible. Stock and all, that percentage is not much difference. So, but the important thing is that income from wages has increased, and the crops production that reduced, and also the non-farm income, that the component, that share has reduced. And details of agriculture household reporting production of selected crops, so that shows that in the paddy, 53.2% of the farmhouse agriculture households reported that they are producing paddy, and from that 52.6% they sell out, and their income level is also given. And we can see that sugarcane, in the case of sugarcane, only 3.5% of the agriculture household reported that they are producing sugarcane, and they got the highest income, 1 lakh
the 1,625, but that is the highest income which they are receiving. That shows that when compared to all the other, this also, this is for July 2018 to December 18 period, and cotton also. That shows that this is kind of commercial crops, food crops, commercial crops, the production, that income level can be increased. And also we know that the medicinal plants and all, no, so if we can just market in very good manner, as it's having demand is somewhere else, and if we could increase the demand and capture, purchase everything, and we can just create the farmers to cultivate more this kind of crops and all, so then definitely we can raise the income. But majority of the people, farmers, are still depending upon this crop cultivation and all, and the crop cultivation, that income level is not that much high, but if it is reducing, it will have some kind of problem of the food production, food insecurity and all. But definitely through intensive cultivation and all, we have to just increase the income. And then details of agriculture household reporting production, this is for 2019 data. And we can see that what are the factors related to low productivity and high average cost in Indian agriculture. You can say seed replacement. Earlier, you were discussing one case and all. So whatever be the things, but when we compare to other countries and all, we know that this high yielding variety seeds increase the productivity yield, and that way the farmer's income can be increased. And here, seed replacement rate for wheat is 31.6, and gram it's 21.7. Mustard, that is 63.4, and crop intensity is 1.42. That means we are just we are using this sown area only for one-time cultivation. Multi-time cultivations, if possible, then we can just increase the production. And irrigation coverage 48 point. And first, most important thing, irrigation, that is majority are from groundwater irrigation and canals and all. So depletion of water is creating a lot of problem in almost in case. And so that we have to just think about micro irrigation, and this is very efficient irrigation facilities, and only the 15% of the total irrigated area is covered by micro irrigation. And there's NPK use, that is nitrogen, and the gap is 3.31 percentage gap is there in the case of nitrogen. Phosphorus, the 19.14 gap, potash 51.049, and this is falling because of the people are thinking that without knowing the scientific way of fertilizer and use and all. So this kind of the use of this kind of NPK that is going down, and use of compost 1/3 since early 1970s. We need to increase of bio fertilizers. That use is also not that much high. And small and marginal farmers were exposed to the high risk of famine, which is result of climate vagaries, uncertainties in production, market demand, lack of access to support services and markets. Applications of advanced science at farm level require skill, knowledge, investment, and improvement in human capital in farming. So these are all lacking, that we know that in our agriculture production, majority are depending upon traditional ways of production. And also, the fragmented plots are there. So there we need to increase more technology oriented production and all, then only we can just increase the income. And Indian agriculture continues to be dominated by low-tech farm practices, low level of mechanization, and relatively lower yielding cultivars compared to global level. Upgrade in farming from low-tech to high-tech, that greenhouse cultivation, polyhouse, tissue culture, precision farming will reduce average cost, raise farmers' income, and address some scale disabilities. India used 2-3 times the water used to produce 1 ton of food in major agriculture countries. Water-intensive crops are being grown in low rainfall areas, and water-intensive practices are spreading. Without improving efficiency of water use in agriculture through modern method of irrigation, drip, sprinkler, sensors, the country cannot address stress on water use and meet future water requirement. That means, that shows that if we are just moving this way in this case of use of water and all, without introducing new methods of this water saving efficient irrigation facilities and all, will face a lot of problems in the groundwater issues and all. How to double farmers, and then we can just discuss about how to double farmers. We know that
reduce the number of persons depends upon family. How we can just reduce the number? So this we have to just discuss. And definitely, I am just trying to connect this part. I am just trying to connect it with the education sector, because is a majority of the population, that means 80% of population directly or indirectly depending upon agriculture, and we need food and all. And also it's a very important sector, but in our curriculum and education sector, nobody is teaching one paper for agriculture. So that is very important. So childhood itself, in the primary school education itself, we are not incorporated the very useful part of the agriculture as an education. So that is why the people who are depending upon a huge number of people who are depending upon agriculture sector can be diverse. That if we can just reduce the number only through creating more employment opportunity outside. So that how we can just create more employment opportunities. So you know that the marketing should be there, and this kind of NPK, the science, this kind of things can be done by educated persons, or this, if we are just created some kind of some papers or that importance to this curriculum, then definitely these people can be the suppliers of this kind of technology suppliers in this farm sector and all, and they can just help marketing this output in the global, create more non-farm employment opportunity, increase marketing facilities, increase productivity through incorporating technology in agriculture, increase R&D. And school education and agriculture, this part is I would like to discuss more about this part. School students are encouraged to learn scientific methods and technology-oriented agriculture, with inclusion of agriculture as a major paper in primary level onwards, especially in rural areas. Children are encouraged to teach the farmers the modern methods of agriculture, especially in small pots. Secondary students for learning chemistry and physics, modern irrigation facilities, compost creation, fertilizer uses, etc., can be taught with practical sessions. So why we are not these kind of very important area is missing in our education system. So definitely we can just incorporate chemistry, and this science, scientific way of fertilizer use is not there. So that's why the farmers, we are just teaching them how to do. They cannot just do, but the children, there's small kids, and we are teaching the technology and we are teaching the science through this, integrating this with agriculture and all. This will create wonders. That's what I'm and you know that these children are from the households and all, they can also start implementing this kind of technology and the marketing, INAM and all. No, so these marketing strategies, the government is implementing something, the students know, they can teach this to their farmers, and that way we can just improve the output. And commerce students can give project work for helping farmers to market their products. And all subjects in higher education, there should be some mandatory chapter for agriculture. So these are the basic things which we should do, because then on that way that we can just create NGOs or the entrepreneurs, social entrepreneurships, and so many things can be created by through the education institution itself. And also, you know that in all the colleges, higher education and all, we all have project work. In the post graduation and the degree level, we have project work. So why this project work, we can just, the government can give some kind of directions, MHRD can be given some kind of directions that these projects should be very useful to the farmers, or the extension, as a part of extension activity should be the part of our curricular activity. And this marketing MBA holders are there learning a lot of things. Their practical things should be in the fields and all. So this way, I think if we are just doing this kind of practices, definitely our farmers' income and can be raised. Otherwise, the government officials and organizations, if we are doing something, it won't reach the actual farmers level. The study shows that the progressive farmers can influence more to these farmers, or the household members can influence the farmers well than the officials or the government officials who are there here and there. So through education and curricular objectives, which are designing to give more importance to agriculture sector and all,
And that way, if we are just interconnecting, I think this kind of problem can be solved a little bit. So thank you. Thank you, Dr. Malika. You wonderful suggestions for doubling farmer income of your lecture. But that only 1% land, 83.5% of rural households hold only 1% land, and 70.4% of agricultural households have less than 1%. And it means land holdings are too small to produce agricultural produce. You have said that professional crops should be increased because sugarcane and cotton have only very less number of producers are there, but their income is much more than the producers of traditional crops. And suggestions, lastly, are very important. Technology should be used to increase productivity. The students from school education should be taught that agricultural techniques from their childhood, so that they may know how agricultural production can be increased in different manners. And commerce students should be given the project for helping farmers to market their product. Marketing is also very important of agricultural products, because without marketing, farmers' income cannot be doubled. Some more points you have in your lecture, that the number of persons depending on farmers should be reduced, because a large number of farmers are dependent on agriculture. So their income is not not increasing so much. Farm employment should be increased in the in a village area, so that agricultural income can be doubled, can be increased, and market facilities should be availed to the farmers, so that they can sell their product in a good manner. So thank you very much, Dr. Malika, for your good and descriptive lecture delivered here. Thank you so much. And now I would like to invite Shri Dhyanpal Singh ji. Dhyanpal Singh ji एक एक्टिव फार्मर हैं, किसान हैं, जिन्होंने मेडिसिनल क्रॉप्स के क्षेत्र में बहुत कार्य किया है, और ये अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करेंगे। इन्होंने कालमेघ, अश्वगंधा, कांटा करंज, शतावरी, मुश्कदाना, सनाय आदि के क्षेत्र में बहुत कार्य किया है, और गवर्नमेंट हॉर्टिकल्चरल डिपार्टमेंट के विभिन्न क्षेत्रों में आपने अपनी एक्सपर्टीज दी है। बहुत सारे एनजीओ के साथ मिलकर आपने मेडिसिनल क्रॉप की ये जो डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं उनमें अपनी भागीदारी दी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2002 से 2023 तक आपने मेडिसिनल प्लांट के लिए बहुत कार्य किया है। तो मैं ध्यानपाल सिंह जी को आमंत्रित करूंगी कि वो अपने विचारों से हमें लाभान्वित करें। श्री ध्यानपाल सिंह जी। Dhyanpal Singh ji, please unmute yourself. ध्यानपाल सिंह जी।
श्री ध्यानपाल सिंह जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। कॉलिंग हो रही है तो आप बोलना तो शुरू करो। हाँ बोलो बोलो, बोलना शुरू करो। नमस्कार। धनपाल जी आप अनम्यूट तो करो अपने आप को पहले, मोबाइल पे अनम्यूट करिए पहले मोबाइल पे। ये बच्चों से कहिए कि, हाँ बच्चों से कहिए कि ये आपको बोलने वाले अनम्यूट कर दें। शक्ल ना दिखाई दे, बोलने वाला कर दीजिए। आप वीडियो ऑफ कर दीजिए, खाली वॉइस वाला चालू कर दीजिए इनका। जी जी। देयर इज सम टेक्निकल प्रॉब्लम, वो गांव में है, गांव से कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही है, तो वो उनका इंटरनेट कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम है, तो मैंने कहा शायद वीडियो बंद करके और शायद ऑडियो चलता रहेगा। तो लेट्स होप फॉर गुड कि वो जो अपनी बातें हैं हमारे सामने रख पाएंगी। अब पूछो। हेलो जी हेलो बोलिए। सर, बोलिए आवाज आ रही है सर? जी आवाज आ रही है, आप बोलिए। जी 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 सर, हाँ जी सर, मैं एक औषधि खेती का किसान हूँ, औषधि खेती कराता हूँ, ऑर्गेनिक है, और जो है ये इसमें बहुत अच्छा फायदा है, और दूना फायदा कहते हैं ना, डबल डबल फायदा। तो उसमें हम अश्वगंधा कर सकते हैं, उसमें इंटरक्रॉप जो है सतावर कर सकते हैं, और ये हल्दी कर सकते हैं, हल्दी का तेल निकाल सकते हैं, पत्तों का तेल निकालते हैं, हल्दी से भी तेल निकालते हैं, चीटी हल्दी तैयार करते हैं। ये सब नेशनल प्लांट है, और जो है ऑर्गेनिक है, सब कुछ बहुत अच्छा स्कोप है, और सप्लाई भी अच्छी आसानी से हो जाती है सब। और मैं 2003 से डॉक्टर साहब के वहाँ में काम कर रहा हूँ, डॉक्टर साहब बी के सिंह के लिए। तो ये मैं और किसानों को करा रहा था, 5-6 जिले में करा रहा हूँ, और बहुत अच्छा रुझान है। जब इस पर कोई वो आ जाता है, स्कीम आ जाती है, तो किसान बढ़ जाते हैं और खेती को बढ़ावा देते हैं सब, और बहुत अच्छा वो है, और टोटली ऑर्गेनिक खेती है। इसमें हम जो है कोई डीएपी यूरिया केमिकल नहीं लगाते, और इससे हमें बहुत फायदा है। और इनमें जो दवाइयां हैं सब बहुत अच्छी कारगर है। कालमेघ है, तो कालमेघ बुखार, डेंगू, मलेरिया, शुगर और ब्लड कैंसर में काम आ रही है सब कालमेघ। और दूसरी आ रही है ये हल्दी, हल्दी आ रही है फोड़ा फोड़ा कैंसर में और शारीरिक कैंसर में काम आ रही है। अश्वगंधा हमारा आ रहा है वहाँ में हड्डी कैंसर में काम आ रहा है। और बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी हैं जो हमें बहुत ही फायदा कर रही हैं, और कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई नुकसान नहीं। और हम किसानों को करा रहे हैं सब। तुलसी है, तुलसी करा रहे हैं, तुलसी का तेल करवा रहे हैं, और वो तुलसी का जो चूचा है वो सामग्री में जाता है सब। तो हमें यहाँ में बहुत रुचि है, किसान बहुत जुड़े हुए हैं, और हम 2003 से इस काम में कर रहा हूँ, और करा रहा हूँ, और आगे और बढ़ा रहा हूँ। अभी मैंने बीज भेजा है सब,
वृंदावन में भेजा है एफपीओ को, और विभाग को भेजा है हल्दी का भी, और कई जगह मैंने 57 के पौधे भेजे हैं लगाने के लिए। उसमें इंटर क्रॉप में अश्वंदा को उगाया था मैंने अभी, तो अश्वंदा तो 6 महीने में आ जाएगा और उसके 1 साल बाद आ जाएगी 57। तो मैं जो है इन पे काम कर रहा होता हूँ जी। और भी किसान जागरूक हो रहे हैं। मैं जो है मथुरा, आगरा, हाथरस, हापुड़, बुलंदशहर, एटा, कासगंज, मैनपुरी, इन जिलों में मैं खेती करा रहा हूँ सब। बहुत बहुत धन्यवाद ध्यानपाल सिंह जी कि आप इतने जिलों में आयुर्वेदिक कृषि को प्रमोट कर रहे हैं लंबे समय से। और ये सिर्फ आयुर्वेदिक प्लांट्स ही नहीं है, बल्कि आपने ऑर्गेनिक तरीके से इनकी खेती कराई है, और इनके बाजारीकरण के लिए, इनके बिकवाने के लिए, इनकी मार्केटिंग के लिए भी आप पूरा से प्रयास कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये यहाँ के किसानों को इस क्षेत्र में लाभ हो रहा होगा। और जैसा कि वीके सिंह जी ने पहले बताया था कि इसमें लागत कम आती है और लाभ ज्यादा होता है, तो निश्चित रूप से किसानों की आय को बढ़ाने में इसका बहुत बड़ा योगदान होगा। तो आपका जो प्रयास है वो फलीभूत होगा। और जो आयुष मंत्रालय है, निश्चित रूप से आयुर्वेदिक कृषि का सहयोग लेकर वो भी आगे बढ़ेगा, और हमारे देश की जो विरासत है उसको विश्व में पहुंचाने का काम भी ये आपके माध्यम से, जो कृषि है वो जो आगे बढ़ रही है, और उससे जो पैदावार होगी, जो फसल होगी, वो फसल निश्चित रूप से विश्व स्तर तक पहुंचेगी आयुर्वेदिक दवाओं के माध्यम से। क्योंकि ये आयुर्वेदिक जो दवाएं हैं वो हमारी संस्कृति, हमारी जो विरासत को तो बताती ही है, लेकिन इसके जो बहुत सारे फायदे हैं जब हम इनका उपयोग करते हैं, जैसा कि अभी आपने बताया कि शतावर का बताया था कि वो कैंसर में भी फायदेमंद है, डेंगू में भी फायदेमंद है, मलेरिया में भी फायदेमंद है। तो हमारी सारी दवाएं हैं वो कहीं ना कहीं हमें फायदा पहुंचाती हैं, इसके साथ साथ इसके कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं होते। नहीं। तो ये अगर हम इनका प्रचार और प्रसार करें, तो जब तक प्रचार और प्रसार नहीं करेंगे तब तक हम वास्तव में लाभ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो हमें सिर्फ उत्पादन ही नहीं करना है, बल्कि और सिर्फ किसानों को ही नहीं इसके उत्पादन के लिए प्रेरित करना है, बल्कि आम जनता तक अपनी बात भी पहुंचानी है कि इनके क्या क्या लाभ हैं। क्योंकि जब तक इनके लाभ जनता तक नहीं पहुंचेंगे तब तक इनकी जो उत्पादन है उसकी अच्छी कीमत नहीं मिलेगी, और अच्छी कीमत नहीं मिलेगी तो किसानों को लाभ नहीं होगा। तो हमें दोनों क्षेत्रों में काम करना है, इसका लाभ पब्लिक को भी पहुंचे और इसका लाभ किसानों को भी मिले, दोनों क्षेत्रों में काम करना है। आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और निश्चित रूप से आपके कार्य से समाज को लाभ होगा, ऐसी मुझे आशा है और विश्वास है। इसी दिशा में आपने हमें अपने अनुभवों से हमें ज्ञात कराया, अपने अनुभवों का लाभ हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और अब मैं अगली कड़ी में अपने आदरणीय सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर आर.के. भटनागर जी से अनुरोध करूंगी कि वो अपने ऑब्जर्वेशंस दें और हमें बताएं कि आपके ऑब्जर्वेशन विभिन्न जो बिंदुओं पर विभिन्न जो वक्ताओं से मिले उनके क्या हैं। आदरणीय डॉक्टर आर.के. भटनागर जी, सेक्रेटरी जनरल इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ इंडिया। भटनागर सर अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट नहीं हुआ आपका। भटनागर सर अनम्यूट कर लीजिए। हेलो, आवाज आ रही है? आ गई सर, आ गई। अच्छा सर, गुड इवनिंग, नमन, बंदन। अलीगढ़ चैप्टर को हार्दिक साधुवाद।
जिनके सौजन्य से इतने महत्वपूर्ण विषय पर आज ये चर्चा हो रही है, डबलिंग इनकम ऑफ द फार्मर्स। इसमें सोसाइटी के विभिन्न चैप्टरों के सदस्यों केरला से, राजस्थान से, आंध्र प्रदेश से और तमाम लोग जुड़े हुए हैं, और सभी विद्वान वक्तागण, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके विचारों को सुनकर बहुत अच्छा लगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने की नोट स्पीच दी अपनी, जिनका सामने स्वागत किया। बड़े अच्छे विचार सामने आए हैं। मैं जरा सा कृषि बड़ा एक महत्वपूर्ण विषय है, इसके बारे में जरा सा बताना चाहूंगा। भारत शुरू से ही कृषि प्रधान देश रहा है तथा 60% से अधिक आबादी गांव, खेतों, खलिहानों से जुड़ी हुई है। किसान ही अन्नदाता है और देश की जीवन रेखा है। कृषि एवं कृषि आधारित उद्योगों की देश की जीडीपी में और अर्थव्यवस्था में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। यदि कृषक खुशहाल होंगे, समाज खुशहाल होगा और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। देश की बढ़ती हुई आबादी के अनुरूप खाद्यान्न की पैदावार तथा उत्पादन एक महत्वपूर्ण पहलू है। आपको याद होगा, मैं आपको ले जाना चाहूंगा सन 50 के दशक में, जब यहाँ खाद्यान्न की बहुत कमी हो गई थी। उस समय PL480 गेहूं मंगाया गया था, जो बहुत ही खराब क्वालिटी का था, फिर भी हमने उसको प्रयोग किया। और स्कूलों वगैरह में मिल्क पाउडर दिया गया, हम लोगों ने खाया उस मिल्क पाउडर को, जो भी अच्छा नहीं था। इस कमी को दूर करने के लिए उस समय के सरकारों ने बड़ा कार्य किया, और देश में, हमारे देश का जो क्षेत्र है उसमें कहीं गेहूं उगता है, कहीं चावल उगता है, कहीं बाजरा, कहीं मक्का, कहीं दलहन, कहीं तिलहन, कहीं आलू, कहीं गन्ना आदि पैदावार होती रहती है, और इसी तरह से इसका प्रयोग भी किया जाता है। इसके सुधार लाने के लिए उस समय सन 52 में जमींदारी उन्मूलन लागू किया गया, जो बड़ा भाई एक क्रांतिकारी कदम था। उसके बाद चकबंदी क्रिया लागू की गई कि छोटी छोटी होल्डिंग्स को इकट्ठा करके एक बड़े बड़े उस होल्डिंग में बनाया जाए उसको। सीलिंग एक्ट लागू किया गया। तो इस सब से कुछ सुधार हुआ कृषि के अंदर, और तमाम ये साहूकार जो गांव में बैठते थे, जो ऋण दिया करते थे किसानों को, वो नियम भी खत्म किया गया। फसल बीमा योजना लागू की गई। अनेक उद्योग भी आए, उसमें सब्जी उत्पादन है, मशरूम उत्पादन है, बागवानी है, फसलों का उत्पादन है, मशरूम उत्पादन है, तमाम चीजें प्रोत्साहित किया। तो ये सब चीजें काफी नई महसूस हुई। वर्तमान समय में सरकार ने 2014 के बाद महत्वपूर्ण कदम उठाए, और आप जानते ही होंगे कि वर्तमान सरकार द्वारा किसानों की आय को दुगना करने की योजना बनाने के लिए एक समूह का गठन किया गया, जिसमें विशेषज्ञ थे, सलाहकार थे और अर्थशास्त्री लोग थे 2017 में। इसमें नीति आयोग का ही बड़ा भारी योगदान रहा। इसी नीति को उत्पादन के केंद्रित करने के बजाय आय केंद्रित बनाने के लिए भी समिति का गठन किया गया है। इसी क्रम में DFI समिति को भी कहा जाता है। कृषि लागत से कटौती के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड व नीम लेपित यूरिया के प्रयोग पर ही बल दिया जा रहा है। कृषि एवं कृषि विकास में निवेश के बीच समन्वय स्थापित हो, उसके भी प्रयास किया जा रहा है। किसानों के उपज उनके द्वारा विधोड़ किस प्रकार की जाए, इसके लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। उत्पादन लागत को 1.5 गुना समर्थन मूल्य भी तय किया जा रहा है। किसान उत्पादक संगठनों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। कृषि संबंधित क्षेत्रों में स्टार्टअप योजना भी लागू की जा रही है। देश में जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन भी बनाया गया है। PM किसान सहायता के माध्यम से किसानों को तमाम सहायता दी जा रही है। इसमें विशेष रूप से, जैसे सभी ने चर्चा करी है, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्पादन महाअभियान, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि यंत्रीकरण योजना, बीज ग्राम योजना, कृषि रोजगार स्नातकों को स्वावलंबी बनाने की योजना, और मृदा परीक्षण के लिए एक वो मोबाइल टीम बनाई गई है जो गाँव गाँव जाके टेस्टिंग कराती है। इन सब प्रयासों से निश्चय ही किसानों की खेतों में बढ़ावा जरूर होगा। और वर्तमान में सरकार द्वारा ये मोटा अनाज को प्रोत्साहित करने की कार्रवाई की जा रही है, जिसमें कि रागी है, जो बाजरा है, समा चावल है, कुट्टू है, इनको भी बढ़ावा दिया जा रहा है कि ये बड़ी स्वास्थ्य के लिए बड़े जरूरी है, इसको भी बढ़ावा दिया जाए। इंटरनेशनल मिलेट डे भी बनाया जा रहा है। तो इन सब योजनाओं से ये लग रहा है कि सरकार के द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि किसानों की आय दुगनी हो। लेकिन एक बात जरूर ये मैं कहना चाहूंगा कि जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, किसानों की जो होल्डिंग्स है वो बहुत छोटी होती चली आ रही हैं। मात्र गेहूं चावल से आबादी बढ़ने वाली नहीं है। आबादी बढ़ेगी जबकि कृषि संबंधित और जो उद्योग हैं उनको लागू किया जाए। आपने भी सबने भारत भ्रमण किया होगा, मैंने भी देखा है कि श्रीनगर में एप्पल बहुत होता है, सेब बहुत होता है वहाँ पर। जम्मू में अखरोट बड़ा होता है।
गुवाहाटी में अनानास बड़ा होता है, और राजस्थान में लाल मिर्च, और ये क्या कहते हैं, मटर, बड़ी मीठी मटर वहाँ की होती है। केरला में, साउथ में तमाम मसाले होते हैं, जैसे कि तेज पत्ता है, और लौंग है, इलायची है। वो आके काजू मशहूर हैं। उत्पादन बहुत हो रहा है। आप देखिए वर्तमान समय में भी पूरे बाजार में आम भरा पड़ा है। नासिक की प्याज मशहूर है, और मध्य प्रदेश की मूंगफली मशहूर है। लेकिन ये सब चीजें हो रही हैं, किसान इनको रख नहीं पाता है, क्योंकि उसको तुरंत पैसा चाहिए, तो वो सस्ते दामों में बेच देता है। तो ये बीच के जो लोग आ जाते हैं, जिनको कुछ भी मिडिल मैन का नाम दीजिए, वो फायदा उठाते हैं। किसान को उसकी उसके जो उपज का मूल्य नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि हर चीज महंगी हो रही है। खाद भी महंगी है, बीज भी महंगा है, और सब चीजें महंगी हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन बड़ा महंगा हो गया है। तो किसान बेचारे को अपनी उपज का पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। इसको प्रयास किया जाना बहुत जरूरी है। और जहाँ तक मैं कहता हूँ कि यूपी की बात अगर आप लेना चाहें, तो मैंने गोरखपुर में भी पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कार्य किया है, यहाँ भी कार्य किया है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का काश्तकार फिर भी समृद्ध है, क्योंकि यहाँ पे होल्डिंग बड़ी है, यहाँ गन्ना होता है और गेहूं होता है, तुरंत उसको बाजार में बेचा, पैसा मिल जाता है। इसी प्रकार इटावा, फर्रुखाबाद और हाथरस में भी आलू का बड़ा भारी उत्पादन होता है। तो वहाँ भी आप समझिए कि वहाँ 200-250 कोल्ड स्टोरेज हैं। किसान जो आलू उत्पादन करता है, वो तो कोल्ड में रख देता है सस्ते दामों में, लेकिन उसको मूल्य नहीं मिल पाता उसका। तो इसलिए हमें बड़ा सोच समझ कर नीति आयोग के माध्यम से और वर्तमान सरकार के द्वारा जो भी कदम उठाए जा रहे हैं, उसमें किसानों को उसकी उपज का सही मूल्य मिलना बहुत जरूरी है। और जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, किसानों के जो नए युवा लोग आ रहे हैं, वो खेती नहीं करना चाह रहे, वो बाहर की तरफ जा रहे हैं, या अन्य उद्योगों में जा रहे हैं, जैसे फ्लोरिकल्चर है, या फिश कल्चर है। मैं तिरुवनंतपुरम गया था, इतनी मछली वहाँ होती है, लेकिन उसको जो मछली उठाते हैं समुद्रों से, उनको उसका दाम नहीं मिल पाता। तो किस प्रकार से इन किसानों को उनकी आय को दुगना करने के लिए प्रयास जो किए जा रहे हैं, वो तो सराहनीय है। लेकिन वास्तव में लाभ उसको कैसे मिलेगा, ये बहुत एक सोचनीय विषय है। इस पर जरूर हमारे एक्सपर्ट ध्यान देंगे। और वर्तमान में आज में ये जो चर्चा में मैडम मल्लिका जी आई कोझिकोड से, और ये जो धनपाल धनपाल सिंह जी आए, इन्होंने अपने अपने प्रयासों से कार्य अच्छा किया है, अपने सुझाव भी दिए हैं। तो मैं आज के इस महत्वपूर्ण गोष्ठी में यही कहना चाहूंगा कि जो वर्तमान समय चल रहा है, इसमें कृषि आधारित उद्योग जो होंगे, वही किसानों की आय को बढ़ा पाएंगे। और जैसा अभी किसी ने बताया भी था, श्री सिंह साहब ने, कि सूरजमुखी का बड़ा भारी उत्पादन हो रहा है, दलहन तिलहन का उत्पादन हो रहा है। तो जो उत्पादन हो रहा है, उसका लाभ किसानों को जरूर मिलना चाहिए। उसके लिए हम सभी लोग प्रयास करते हैं, चाहे वो सरकारी मशीनरी हो, चाहे एनजीओ हो, चाहे एक्सपर्ट्स हों, चाहे अर्थशास्त्री हों। वो सभी चाह रहे हैं कि किस प्रकार से किसानों की आय को हम बढ़ावा दें, जिससे कि वो अपना जीवन सामान्य अच्छे से बिता सके। मैं बहुत अधिक ना समय लेकर मल्लिका जी का बड़ा आभारी हूँ, उन्होंने बहुत अच्छे विचार अपने दिए हैं। और जो एक कृषक हैं धनपाल सिंह जी, उन्होंने जो खेती में काम करते हैं, गांव में रहते हैं, उन्होंने अपने विचार दिए। तो हमें उन गाँव की तरफ देखना चाहिए, जो गाँव में किसान लोग एक अच्छे माहौल में नहीं रहे हैं, उनकी तरफ भी बहुत ध्यान देना बहुत जरूरी है। प्रभु श्रीमान कृषक हैं, कभी कभी आप देखिए और ओला पड़ गया, फसल खड़ी, ओला पड़ गया, आग लग गई गाँव के अंदर, या पानी नहीं बरसा। इतनी किसानों को समस्या झेलना पड़ता है कि वही जानता है। रात के 12 बजे बिजली आ गई, भगा चला जा रहा है ट्यूबवेल को चलाने के लिए। तो ये जो वार्षिक समस्या है, इनसे हमें रूबरू होना चाहिए। और मात्र योजना बनाने से बहुत काम चलने वाला नहीं है। किसानों को ऋण मिलता है बैंकों से, बैंकों को कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं किसानों को। हमें इन समस्याओं की तरफ भी ध्यान देना बहुत जरूरी है, तो किसान ही हमारा अन्न देता है, उसका सम्मान ही हमारा सम्मान होगा। तो इस भारत देश के सभी किसानों का बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, जो जो देश के लिए अन्न उत्पादन करते हैं। और ये भी एक बात कहना चाहूंगा, यदि किसानों ने गेहूं चावल पैदा नहीं किया, इतनी आबादी को गेहूं चावल कौन देगा, कहाँ से आएगा। तो एक बड़ा एक बैलेंस वे में सोचना है हम लोगों को, कि किसानों की आय भी दुगनी हो, और जो हमारे आम जनता है, उसको भी भरपूर तरह से किसान कृषि उद्योग से संबंधित चीजों का लाभ मिले, और सही मूल्य पे सही सही दाम उसको मिलने चाहिए। मैं पुनः एक बार डॉक्टर गिरीश सिंघल जी का, और डी.के. अस्थाना जी का, इंदु वार्ष्णेय जी का, और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने बड़े महत्वपूर्ण विचार दिए हैं। निश्चय ही आज की इस गोष्ठी से लाभ मिलेगा, और किसानों की आय वृद्धि में नई सोच जरूर मिलेगी। और एक बात मैं और बताना चाहूंगा कि हमारा जो राष्ट्रीय अधिवेशन होने वाला है,
गुड सोसाइटी ऑफ इंडिया का जुलाई के महीने में, उसका टॉपिक भी ये लिखा गया है, डबलिंग इनकम द फार्मर्स। ये टॉपिक है, उसमें आपके सुझाव जो दिए गए हैं उनको पेपर प्रस्तुत करेंगे, और जो हमारी मैगजीन छपती है उस पर भी उनके विचार देना चाहेंगे। और साथ ही जो हमारा इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन है, इसके पैटर्न हमारे तोमर साहब हैं, उनके सहयोग से बड़ी अच्छी गोष्ठी का आयोजन किया गया। मैं पुनः एक बार आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद। धन्यवाद सर, आपने अपने महत्वपूर्ण विचार यहाँ दिए, और विशेष रूप से कि सरकारी योजनाएं निरंतर सरकार की प्रयासरत हैं कि किस तरीके से किसानों की आय को डबल किया जाए। सरकार इस प्रयास में है और बहुत सारी योजनाएं सरकार ने चलाई हैं, लेकिन समस्या वही आती है कि जहां उत्पादन होता है उसको तुरंत बेचने के लिए किसान के पास, क्योंकि उसके पास सुविधाएं नहीं है, उसको अपनी फसल तुरंत बेचनी पड़ती है, तो उसे अपनी फसल का जो कीमत वास्तव में मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती, और जो बिचौलिए हैं वो उसका लाभ उठाते हैं। तो निश्चित रूप से हमें कुछ ऐसा करना होगा कि किसान अपनी फसल को होल्ड कर सके और सही समय पर सही कीमत मिलने पर अपने फसल को बेच सके। इसमें आपने भी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी दो महत्वपूर्ण बिंदु कहे थे। सॉइल हेल्थ कार्ड, मिट्टी की जांच और उसके स्वास्थ्य की, मृदा स्वास्थ्य की जांच करने के बाद ही हम किसानों को सजेस्ट करें कि उन्हें अपनी भूमि में किसकी फसल करनी है। वास्तव में किसान भूमि की जांच नहीं कराता, मिट्टी की जांच नहीं कराता, और वो एक, जिसे हम कहते हैं कि एक पारंपरिक रूप से कह रहे, वो आसपास देखता है कि किसकी फसल ज्यादा हो रही है, वो अपने खेत में उसी फसल को करने लग जाता है। जबकि वास्तव में वो मिट्टी की जांच कराने के बाद उसकी मिट्टी का स्वास्थ्य किस फसल के लिए उपयोगी है, अगर उसके आधार पर खेती होगी तो निश्चित रूप से फसल भी अच्छी होगी और उसकी कीमत भी अच्छी मिलेगी। तो अगर मृदा जांच प्रॉपर लेवल पर हो पाए, किसानों को उसके बारे में प्रॉपर जानकारी हो कि उन्हें पहले मिट्टी की जांच करानी है, क्योंकि हमने देखा गया है कि पानी की कमी है लेकिन किसान वहां पर चावल की खेती कर रहा है, जब धान की खेती कर रहा है और वहां पानी नहीं है तो जाहिर है कि उसकी लागत ज्यादा आएगी। तो ऐसी जगह पर धान की खेती हो जहां पानी की उपलब्धता है, और जहां पानी की उपलब्धता कम है वहां इस तरीके की फसल हो जहां हम कम पानी से काम चला सकते हैं, तो हमारा जो वाटर लेवल है वो भी नीचे नहीं जाएगा, हमारी फसल में लागत भी कम आएगी, उत्पादन भी ज्यादा होगा और किसानों की आय निश्चित रूप से बढ़ेगी। तो हमें किसानों को इस बात के लिए प्रेरित करना होगा, उनको हमें बताना पड़ेगा कि आपको किस तरीके की फसल करनी है, आपकी भूमि किस तरीके की फसल के लिए उपयुक्त है। अगर ये फसल करेंगे तो आपकी आय ज्यादा होगी, और प्रोफेशनल क्रॉप्स की तरफ बढ़ना तो निश्चित रूप से लाभदायक होगा, क्योंकि जब किसान परंपरागत एक सी ही खेती करता है तो जाहिर है कि जब एक साथ फसल आती है तो उसकी फसल की उपयुक्त कीमत उसे नहीं मिलती, क्योंकि अर्थशास्त्र में जो डिमांड एंड सप्लाई का लॉ है, जब सप्लाई एक साथ सामने आ जाती है, डिमांड कम होती है तो ऑटोमेटिकली कीमत गिरती है। तो हमें इस तरीके की फसलों को करने के लिए किसानों को प्रेरित करना होगा जो किसानों को लाभ दे सके, और परंपरागत कृषि तो होती ही है लेकिन उससे हटके भी कुछ हो, तभी किसानों की आय को हम दोगुना कर पाएंगे। तो आपका बहुत बहुत आभार सर कि आपने अपने बहुमूल्य विचार यहाँ दिए और अपने ऑब्जर्वेशंस हमारे सामने प्रस्तुत किए। अब मैं आमंत्रित करूंगी इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन के चीफ कॉन्फ्रेंस कोऑर्डिनेटर और इंटरनेशनल गुडविल सोसाइटी अलीगढ़ चैप्टर के संरक्षक आदरणीय डॉक्टर ए.के. तोमर सर को कि वो आए और अपने ऑब्जर्वेशंस दें। प्रणाम मैडम, सभी को प्रणाम। आई एम ऑडिबल मैडम? जी सर। सभी को प्रणाम करता हूँ। ये आज की जो संगोष्ठी है, नेशनल कॉन्क्लेव है, इसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर योगेंद्र नारायण जी उपस्थित रहे। उनकी प्रेरणा से ये कॉन्क्लेव हुआ। टॉपिक भी उन्हीं के द्वारा सजेस्ट किया गया था। हम लोगों ने तो एक छोटा सा प्रयास किया यहाँ पर। मैं इस संगोष्ठी के लिए प्रोफेसर केसी सेंगर साहब जो हमारे प्रेसिडेंट हैं एसोसिएशन के, उनको धन्यवाद देता हूँ और बड़े अच्छे विचार आए हैं आज। इसी तरह से हमारे भटनागर साहब ने, जो कि हमारे जनरल सेक्रेटरी है, उन्होंने बिल्कुल सार रूप में सारी चीजें रखी, सारे बिंदुओं को उठाया। तो आज का जो ये संगोष्ठी है
उसका जो क्रेडिट है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी डॉक्टर योगेंद्र जी को जाता है, डॉक्टर भटनागर साहब को जाता है कि उन्होंने हमें प्रेरणा दी कि हम अलीगढ़ से ऐसा शुरुआत करें। और ये तो अब नेशनल लेवल पे डिस्कशन होंगे, जुलाई में सर कह रहे हैं, और उसके ऊपर पेपर भी इनवाइट किए गए हैं। तो बहुत सारे साथियों से निवेदन भी किया कि वो पेपर दें। आज की संगोष्ठी में डॉक्टर वीके सिंह साहब ने जो आज प्रेजेंटेशन दिया, वो प्रेजेंटेशन बिल्कुल फील्ड बेसिस पे है, और उन्होंने अलीगढ़ में किसानों की इनकम बढ़ाने के लिए ये प्रोग्राम लेके आए। और निरंतर मैं भी उनके साथ लगा था इस कार्यक्रम में, उनके साथ हमारी एक टीम थी। तो डॉक्टर वीके सिंह के साथ गांव-गांव गए और उन्होंने समय अनुसार उसमें चेंजेस किए, और उन्होंने केवल एकेडमिक के साथ फील्ड में जाकर के किसानों को कैसे फार्मिंग करना है, कैसे उन बीजों को ला के दिया, फिर मार्केटिंग करने का तरीका बताया। तो सर एक चीज मैं कहना चाहता हूं आप सबसे कि किसान तो प्रोडक्शन कर लेता है, उसकी मार्केटिंग की समस्या आती है, स्टोरेज की समस्या आती है। तो दो चीजें आज पूरे डिस्कशन में निकल के आई कि जो फार्मर्स हैं उनकी मार्केटिंग प्रोडक्शन की कैसे हो उस समय से, जिससे उन्हें पैसा मिल सके। तो प्रोडक्शन जब हो जाता है तो उनको प्राइस गिर जाते हैं, और उनको वो प्राइस नहीं मिल पाता जिसकी कॉस्ट भी निकल जाए। जैसे अभी पोटैटो में हुआ, पोटैटो में प्राइस गिर गई। और इसी तरह से जो है, जो हमारे फार्मर्स हैं उनको स्टोरेज करने का मौका नहीं मिलता। स्टोरेज कैसे करें? तो ये रूरल गोडाउन्स जो है दे मस्ट बी कंस्ट्रक्टेड, और उनको एनकरेज करना चाहिए। तो जो हमारे जो सजेशंस हैं, जो हमारे सजेशन डॉक्टर वीके सिंह साहब ने दिए हैं कि मेडिसिन प्लांट को ग्रो करके भी फार्मर्स की इनकम बढ़ सकती है, ये भी एक बहुत बड़ा साधन है। अलीगढ़ में तो अलीगढ़ रीजन में, आगरा रीजन में बहुत सारे किसानों ने इसे अपनाया। और ये समझिए कि इस फील्ड में, मेडिसिन प्लांट में चाइना सबसे आगे है, और वर्ल्ड का पूरा बाजार जो है मैं समझता हूँ नहीं होगा तो 85% मार्केट चाइना के हाथ में है इसका। ये बहुत बड़ा बिजनेस है मेडिसिन प्लांट्स का और सीड्स का। तो सर का जो सजेशन है वीके सिंह साहब का, इंडिया में भी हम फार्मर्स को एक साइड इनकम दे सकते हैं थ्रू मेडिसिन प्लांट की, बशर्ते कि ये फार्मिंग ऑर्गेनिक होती है, बहुत कम खर्चे पे हो सकती है। जैसे कि ध्यानपाल सिंह जी जो हमारे फार्मर हैं, वो उन्होंने जो सजेशन दिए वो इस बात में लगातार स्ट्रेस किया उन्होंने कि ये लाभदायक है, इससे इनकम जनरेशन भी होगा और इसकी आसानी से बिक्री भी कर सकते हैं। तो डॉक्टर वीके सिंह साहब ने इसकी बिक्री के लिए भी प्रयास किए थे, और आज भी प्रयास कर रहे हैं। और मैं उनके प्रयासों की सराहना करता हूं कि उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन भी किया चीजों का, केवल एकेडमिक काम ही नहीं किया, फील्ड में भी गए और उसको प्रैक्टिकल लेवल पे लागू भी कराया, और उसको डॉक्यूमेंटेशन करके आज भी बुक्स अवेलेबल है हिंदी इंग्लिश में। तो अगर इन वीके सिंह साहब को हमारे गुरु सोसाइटी का प्रोत्साहन दिया जाए तो डॉक्टर सिंह के माध्यम से हम लोगों को एक चीज दे सकते हैं मेडिसिन प्लांट पे। तो आज का प्रोग्राम जो है इसको सफल बनाने में डॉक्टर इंदु जी का बहुत बड़ा योगदान है। वो एज ए मॉडरेटर उन्होंने हर एक को समराइज किया, और उन्होंने साथ साथ अपने विचार भी रखे, और एक्चुअली वो फील्ड में बहुत काम भी करती हैं, और एग्रीकल्चर में काम करने के लिए मौका भी है सर। पर हुआ ये है सर कि हमने किसान से जो प्रोडक्शन बढ़ा लिया हमने, जब हम एक और सन 65-66 में पीएल 480 में गेहूं मंगा रहे थे अमेरिका से सड़ा हुआ, तो भारत के किसानों ने आज एक्सपोर्ट करने का मौका दे दिया हमें, पर हमने किसानों की इनकम बढ़ाने पर ध्यान नहीं दिया। ये मोदी जी सरकार ने किया कि इनकम कैसे बढ़े, इसको सोचा। हालांकि इनकम सर ने भी कहा कि 10,000 समथिंग आ रही है पर मंथ, तो वो इनकम डबल तो नहीं हो पाई, पर इसको सोचा। तो जब सोचा गया तो इस दिशा में काम भी होना चाहिए, हो रहा है। तो मैं समझता हूं कि आज की जो संगोष्ठी है, आज की जो कॉन्क्लेव है, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में बात रखी गई, और सबसे ज्यादा किसानों को जोड़ा गया, किसान जुड़े और ऐसे साइंटिस्ट जुड़े एग्रीकल्चर फील्ड के। डॉक्टर सिंह साहब बॉटनी के प्रोफेसर नहीं बल्कि एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बहुत काम किया है फील्ड में, आई विटनेस हिज वर्क। तो मैं इस संगोष्ठी की सफलता के लिए पूरी टीम को, प्रोफेसर डॉक्टर सिंगल साहब को, डॉक्टर भटनागर साहब को और डॉक्टर अक्षरा जी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। इस तरह की संगोष्ठियां और भी होनी चाहिए, और किसानों के विषय है तो किसान आने चाहिए, उद्योग का विषय तो उद्योगपति आने चाहिए, और इससे हमारे देश के। और जो डॉक्टर मल्लिका जी हैं, उन्होंने उसका जो एक एकेडमिक साइड है और जो सजेशंस दिए हैं डॉक्टर मल्लिका जी ने, वो भी बहुत ही एक्सीलेंट आइडियाज है। और किसानों, छात्रों की भूमिका को हम नहीं कमतर न करें, किसानों के माध्यम से अच्छी खेती कैसे हो, इसको हम किसानों तक पहुंचा सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि
नहीं बस मैं एक्सीलेंट के अलावा कुछ नहीं कहना चाहूंगा। एक्सीलेंट परफॉर्मेंस रहा है और मेरा खुद खेती से जुड़ाव है और हमारी जो एग्रीकल्चर की जो स्टडीज है वो भी बड़ी पिछड़ी हुई। अलीगढ़ जिला कृषि प्रधान है परंतु यहाँ पर बीएससी एग्रीकल्चर का एक ही कॉलेज है इगलास में और कोई कॉलेज नहीं। और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के लेवल में बीएससी की पढ़ाई नहीं होती, वहाँ हाई लेवल की स्टडी होती है। तो ये हमारा नेग्लेक्टेड पार्ट है। तो thank you very much for you all to participate in this seminar and blessing us. Thank you, sir. Thank you, sir. बहुत बहुत आभार सर, आपने अपने Thank you. ऑब्जर्वेशन Thank you. यहाँ दिए, आपने अपने ऑब्जर्वेशन यहाँ दिए और अपने विचार रखे कि निश्चित रूप से किसानों की आय तभी डबल हो सकती है जब वीके सिंह जी जैसे, धर्मपाल सिंह जी जैसे लोग फील्ड में जाके काम करते हैं और परंपरागत कृषि से हटकर कुछ करने की कोशिश करते हैं, तो निश्चित रूप से किसानों की आय बढ़ेगी। और दूसरी बात, अगर जैसा कि आपने कहा कि वेयर हाउसेस की कमी है, तो वेयर हाउसेस को बढ़ाने की आवश्यकता है। अगर वेयर हाउसेस बढ़ेंगे और उसमें फसल को संरक्षित रखा जा सकेगा तो निश्चित रूप से किसान अपनी फसल को वहां संरक्षित करके अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। तो ये जो बिंदु आपने रखे वो निश्चित रूप से अगर उनको हमने इम्प्लीमेंट किया तो किसानों की आय निश्चित रूप से बढ़ेगी। अब अगले चरण में मैं अस्थाना जी से अनुरोध करूंगी कि वो वोट ऑफ थैंक्स कहें, आभार प्रदर्शन के माध्यम से अपने विचार अपने जो अतिथि हैं उनके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करें। डॉक्टर डी के अस्थाना। जी धन्यवाद डॉक्टर इंदु वाशनी जी और मॉडरेटर। मैं एक बार प्रार्थना करूंगा कि मुझे टेक्निकल टीम की डॉक्टर उससे मुझे मोनिका जी से सिग्नल मिला है कि हम सब लोग वीडियो ओपन कर लें जिससे कि वो एक ग्रुप फोटो ले सके। इससे पहले कि मैं अपना काम बात शुरू करूं, एक बार सब लोग अपने वीडियो ऑन कर लें जो यहाँ उपस्थित हैं, जिससे कि एक ग्रुप फोटो लिया जा सके। प्लीज ओपन योर वीडियोस, ऑल अदर पीपल्स। प्रोफेसर प्रवीण शर्मा, जयपुर। डॉक्टर मलाइका, प्रोफेसर मलाइका, Tirur, open your video, please. Ramaya Rajan, you also. Dr. Gitu Sharma is there. Good. Please open your video so we will have a group photo. So nice of you. Dr. Monica, you can take the videos, photos now. फिर कल से और लोग, शफाली यू ओपन प्लीज। मोहित, अंकुर, डॉक्टर ललित उपाध्याय, दोज हु आर प्रेजेंट हियर प्लीज ओपन योर वीडियो। ओके, राइट। तो मैं सबसे पहले इंटरनेशनल गुडविल सोसाइटी ऑफ इंडिया के रीजनल सेक्रेटरी होने के नाते आप सबका जो यहाँ उपस्थित हैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। आज के चैप्टर में जो हमारे चैप्टर्स आए थे ये बड़ा एनकरेजिंग है मेरे लिए भी कि आज मेरठ चैप्टर, मुजफ्फरनगर चैप्टर, दिल्ली से, देहरादून से, हापुड़ चैप्टर, कोझिकोड से, जयपुर से, अलीगढ़ चैप्टर तो है ही, हाथरस और मथुरा एंड बुलंदशहर ऑल्सो, ये सारे चैप्टर्स के प्रतिनिधि बीच बीच में हुए, यहाँ पर आए और यहाँ पर उन्होंने बीच में भाग लिया। मैं उन सबका अलीगढ़ चैप्टर की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ। स्पेशली हम लोग थैंकफुल हैं सबसे पहले तो जस्टिस नगेन सिंह जी के, जो ये फोटो यहाँ लगी हुई है, जस्टिस नगेन सिंह जी के हमारे फाउंडर प्रेसिडेंट हैं और उनको ट्रिब्यूट हम यहाँ देना चाहेंगे अपनी तरफ से, सबकी तरफ से, कि उन्होंने एक ऐसी संस्था का संगठन किया और उसको बढ़ाया आगे कि जिसके अधीन में हम आजकल काम कर रहे हैं और अपने देश और जनता और इंटरनेशनली कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए और इंटरनेशनली कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे जो कीनोट स्पीकर थे रिटायर्ड आईएएस हमारे योगेंद्र नारायण जी, जो कि NH गढ़वाल यूनिवर्सिटी के चांसलर भी हैं, उन्होंने अपने बहुत विद्युतापूर्ण भाषण में बहुत सारी बात की, उनके लिए हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। डॉक्टर वीके सिंह जी, फॉर्मर एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, पूसा इंस्टीट्यूट,
तो हमने स्पेशली उनको बुलाया था। उन्होंने अपने बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों को अपनी चीजों के बारे में बताया, जो उन्होंने काम किया है उसके बारे में बताया, और उनके कामों से कितना असर पड़ा है इस बात को भी हमने देखा कि उन्होंने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिखा उसका फर्क पड़ा। प्रोफेसर मलाइका एमजी, एसोसिएट प्रोफेसर, स्कूल ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज, टीई मलयालम यूनिवर्सिटी तिरुवुर। आपने बहुत ही मतलब बिल्कुल एक रिसर्च पेपर की तरह से उसको पूरा काम किया और पॉइंट टू पॉइंट हम सब चीजों को डिस्कशन किया। दिस वेरी थैंकफुल टू यू एंड प्लीज सेंड दिस पेपर टू आवर जनरल आल्सो, सो वी विल पब्लिश इन योर रिसर्च पेपर इन आवर जनरल। मिस्टर ध्यानपाल सिंह जी प्रोग्रेसिव फार्मर थे, कुछ टेक्निकल परेशानी थी, उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी बातें हमारे सामने रखी कि उन्होंने इसके प्रगति के लिए क्या क्या काम के लिए, उनका तहे दिल से धन्यवाद। मिस्टर आर.के. भटनागर, नेशनल सेक्रेटरी जनरल, IGSI, रिटायर्ड IAS, हमारे मेंटर हैं, उनके मार्गदर्शन में हम सब लोग काम करते हैं और आज का कॉन्क्लेव भी उनके मार्गदर्शन में ही हुआ। प्रोफेसर A.K. तोमर, फॉर्मर प्रिंसिपल DS कॉलेज, हमारे मेंटर, नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं इंटरनेशनल गुडविल सोसाइटी के। आपकी प्रेरणा और आपकी एनर्जी से ही हम सब लोग चलते हैं, सीधा सा माना जाए कि ही इज आवर मेंटर आल्सो। आवर मॉडरेटर प्रोफेसर इंदु वाशने, प्रिंसिपल SRDA कॉलेज, नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर हैं IGSI की। उन्होंने आज बहुत ही सुंदर तरीके से आज के सभा का संचालन किया और अपने विचार सबके सामने साथ रखे, और जो उन्होंने स्पष्टता की उसके लिए मैं उनका बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। डॉक्टर गीतू शर्मा जी यहाँ पे हैं। प्रोफेसर प्रवीण शर्मा जी जयपुर से हैं, IGSI चैप्टर की सेक्रेटरी प्रेसिडेंट हैं वो। डॉक्टर मुकेश कुमार जी, डॉक्टर रमैया राजन, प्रेसिडेंट कोझिकोड चैप्टर, और हमारे IA के भी वो एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर हैं, कोझिकोड चैप्टर में हैं। डॉक्टर मोनिका वाशने, अवर इंचार्ज ऑफ टेक्निकल सपोर्ट, डिजर्व द स्पेशल थैंक्स। वो और उनकी टीम जितना मेहनत करते हैं हम लोगों के साथ, हमारा सपोर्ट करती है, हम उनका बहुत दिल से और अपने इंडियन इंटरनेशनल गुडविल सोसाइटी अलीगढ़ चैप्टर के उनके बहुत बड़ा धन्यवाद देते हैं। डॉक्टर मुदित, अंकुर, कविता, डॉक्टर पवन चाहर, मिस्टर पवन चाहर, मिस्टर ब्रिजमोहन जी हापुड़ चैप्टर से, वैभव जैन जी IGSI प्रेसिडेंट, GS पांडे जी, मिसेज डॉक्टर अर्चना, मिस्टर कुमार अस्थाना, प्रेसिडेंट ऑफ IGSI देहरादून, वो भी हमारे साथ जुड़े थे। इज ए वेरी इंटेलिजेंट पर्सन और वो हमारे साथ जुड़े थे। वो जरूरी हमको इस पर राइट अप लिख कर देंगे, जिससे हम आगे बात करेंगे। In the last but not the least, I thank with all the depth of my heart all the participant, research scholars, professors, learned and intellectual person who will join this webinar or the conclave. उन सभी का दिल से धन्यवाद। And we will meet again in the 5th of June on Environmental Day. Environment Day by our Kozhikode chapter. We are organizing a webinar. We will meet again on the 5th day. On these words, I take the rest and thank you very much for you all to be join us. मैं लास्ट चैप्टर के लिए, क्योंकि समय भी हमारा हो गया है, जितना हम लेट शुरू किया था उतना ही टाइम हो गया, तो इन द टाइम वी हैव फिनिश इट नाउ फॉर द नेशनल एंथम। डॉक्टर इंदु वाशनी जी प्लीज आप नेशनल एंथम सॉन्ग करें और बाकी सब लोग म्यूट कर दीजिए। थैंक यू। सभी लोग अपनी जगह पर खड़े। जनगण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। भारत माता की जय। वंदे मातरम। थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे झेला इतनी देर, और सभी लोगों ने बहुत अच्छे विचार यहाँ प्रस्तुत किए। थैंक यू।
थैंक यू वेरी मच। सभी को नमस्कार। नमस्कार।